Hi, good evening, everyone. Once again, welcome back to my YouTube channel. गुड इवनिंग। आपने आफ्टरनून की लाइव अटेंड कर ली? देख लिया अच्छे से? आई ऑल डन, प्रिपेयर्ड? Just in another minute, we'll start off with laws of return. मजा आ रहा है? Are you liking economics now? अब थोड़ा clarity मिलना start हो गया है. What are the things, the concept that you need to bear in mind? Why economics during SIRS class is easy peasy and then during exam it is tough? नहीं, national income के sums are not tricky, just conceptual based, easy ही है, हो जाएगा, ठीक है? Question में ही दिया रहता है बेटा कि whether there is a shift in demand or shift in supply. Oh, thank you so much, Saloni Srivastav. Good evening, Shrestha Biswas. Tiasa, Paul, I couldn't attend afternoon's live. Please do it later on. What questions code for you? Questions मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम से पहले, उससे पहले तो मैं कोई questions नहीं दूंगा. Put in the hard work. Sir, your English classes were gold. Sir, we want English sessions after our boards. For what? Thank you so much, Subeksha. Sir, is calculator allowed or not? Of course it is. Om Preet, of course I do remember you. Good evening, good evening. Thank you so much, Yashvi. चले start करें? Enough of चर्चा. Now let's get going with laws of return. चलो, चलिए भैया, चलिए जल्दी से शुरू करवाइए एंड जल्दी जल्दी हमें विदा करिए. Although my heart says अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, but then जाना तो पड़ेगा. After 23rd हमारा साथ, हमारा सफर कंप्लीट हो जाएगा. चलो, laws of return. Now enough. If you want, please take out a copy, open your ears and ध्यान से समझिए, सुनिए क्या कराया जा रहा है. First of all, what is the meaning of this chapter? Laws of return का मतलब हुआ, यहाँ पे जो आप return देख रहे हो, the return that you're seeing over here, which is written, this return is associated with output. ठीक है? And output मतलब ये chapter deals with production. So this chapter is about the behavior of production. Very important chapter because from chapters 7 onwards, 7, 8, 9, 10 and 11, they all are interconnected. And जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है को-रिलेट करके ही पूछा जाता है. If you are not very thorough with production, you will definitely face difficulty in doing cost. सो इसीलिए लॉज को अच्छे से समझिए, प्रोडक्शन बिहेवियर को अच्छे से समझिए, ताकि आपका लॉ आपका कॉस्ट पढ़ते हुए आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उससे आपका रेवेन्यू होगा एंड देन उनको कंबाइन करके प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बनेगा. ठीक है? सो स्टार्टिंग विद द बिहेवियर ऑफ प्रोडक्शन एंड टू बिगिन विद, before I start something, I want to tell you about the inputs. Definitely production is about the act of making goods and services and plus adding utility to the object. अगर definition of production बोला जाए, कुछ बनाना को प्रोडक्शन बोलते हैं, लेकिन आप कुछ भी बना दोगे तो कुछ भी नहीं बिक जाएगा बोल के every producer is expected to add some utility, that is want satisfying power of the commodity to a product.
बिकॉज एक कंज्यूमर हमेशा गुड्स को यूटिलिटी देख के ही परचेज करता है कि उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो वो काम प्रोड्यूसर का है ऐड करने का। कितने तरीके से यूटिलिटी ऐड किया जा सकता है? 4 तरीका से। फॉर्म यूटिलिटी बाय चेंजिंग द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, प्लेस यूटिलिटी बाय ट्रांसफरिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, टाइम यूटिलिटी बाय प्रिजर्विंग और स्टोरिंग द गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड ऑफ, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, समय लगता है गुड्स बिकने में, तो गुड्स को प्रिजर्व करना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम सर्विस यूटिलिटी, प्रोवाइडिंग डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट और नॉन फैक्टर सर्विसेज एज वेल। ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। नाउ प्रोडक्शन यानी आउटपुट बनाने के लिए इनपुट का रिक्वायरमेंट होता है। यहां पे टाइम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द टाइम, टाइम के अनुसार इनपुट को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, fixed factors and variable factor, fixed input and variable input. Fixed factors are those factors which cannot be changed easily, and that too specially they remain fixed in the short run time period. Short run में fixed factors एकदम change नहीं हो सकता है। That means production को अगर बढ़ाना है short run में तो सिर्फ variable factors को ही change करके production को बढ़ाया जा सकता है। Am I clear? इतना आपको समझ में आया? On the other hand, variable factors are those factors which can be changed easily both in the short run as well as in the long run. सारे ही factors variable हो जाते हैं। In other words, in long run there are no fixed factor. अगर short run में मैं बात करूं तो टाइम पीरियड के हिसाब से शॉर्ट रन में लैंड और कैपिटल आर कंसिडर्ड टू बी फिक्स्ड फैक्टर्स, क्योंकि बहुत टाइम लगता है उनको चेंज करने में। एंड लॉन्ग रन में आप लैंड को भी चेंज कर सकते हो, कैपिटल को भी चेंज कर सकते हो। सो ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। तो फटाफट से आप डिफरेंसेस के ऊपर नजर घुमा लीजिए, क्या लिखा हुआ है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से नजर घुमा लो डिफरेंसेस के ऊपर। Factors that cannot be changed easily, that is fixed factor. Factors that changes with the change in output. Land, machine, building, labor, raw material, fuel, operates in the short run, operates in both short and long run, leads to diminishing return. इसके ऊपर अभी हम लोग आएंगे। We are going to discuss about this and relevance, importance क्या है, important for short run decision and both for short and long run decision. Is that clear? Is that clear? Yes, indifference curve can be linear in shape. हो सकता है when the two goods are perfect substitute, कोक एंड पेप्सी अगर हुआ तो वहां पे सैक्रिफाइस इज टू गेन 1:1 हो जाएगा। एक एडिशनल कोक के लिए आप एक ही पेप्सी को गिव अप करोगे। इन दैट केस इंडिफरेंस कर्व कैन बी लीनियर इन शेप। ठीक है, वो आप खुद मैनेज कर लीजिए। फिजिकल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स को आपको कैसे करना है, मेरे को तो अपना काम कंप्लीट कराना है, सो आई विल बी गोइंग फॉरवर्ड विद दैट। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, प्रोडक्शन फंक्शन पहले क्या होता है उसके बाद डिस्कस करते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। सबसे पहले कोई भी चीज का फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको क्या सिखाया, एनी फंक्शन मैथमेटिकली एक्सप्रेसेस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल वेयर वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट एंड द अदर वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट। तो यहां पे अगर हम लोग प्रोडक्शन को बारीकी से समझे तो हमें समझ आता है कि आउटपुट बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए हमें इनपुट का रिक्वायरमेंट होता है। सो प्रोडक्शन फंक्शन इज टू एक्सप्रेस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। या इसको थ्योरेटिकली अगर बोला जाए तो प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली हिंदी में अगर मैं बोलूं तो ये बताता है कि आप कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ द अवेलेबल इनपुट, जितना इनपुट अवेलेबल है, व्हेन द बेस्ट technique of production is utilized. So a production function is fundamentally to express the quantity of output which can be produced by making use of the available input when the best available technique is employed. Am I clear with that? Am I clear with that? Eco में कुछ रटना ही नहीं है, समझ के अपने वे में ही लिखना है। And if you have my notes, then it's a cherry on top. ठीक है, आप बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिएगा अगर लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सो टाइम पीरियड के हिसाब से वी हैव शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन आर टू एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, बट in case of short run production function where only one input is variable, rest all are assumed to be fixed. In other words, labor खाली variable है short run में, बाकी सारे लैंड कैपिटल वगैरह फिक्स्ड है।
On the other hand, long run production function is to express the functional relationship between output and input when all the inputs are variable. सारे input को simultaneously change किया जा सकता है. ठीक है, मेरे से समझने के बाद, मेरा नोट्स को रीड करने के बाद आपको मेरा नोट्स खुद भी नहीं रटना पड़ेगा, आपके दिमाग में इनग्रेन्ड हो जाएगा, आप चाहो या ना चाहो. दैट इज माई एश्योरेंस. जो लोग मेरे से एक्सप्लेनेशन लेते हैं, मेरा नोट्स को एक बार या दो बार रीड करते हैं, उनके दिमाग में सेट हो जाता है पूरा पूरी. ठीक है, आई होप आई एम सेइंग ट्रू. लाइक जो लोग मेरा नोट्स लिए, जो लोग मेरे से पढ़ रहे, एक्सप्लेनेशन वगैरह, निर्भय स्टूडेंट्स, एनीबॉडी हु इज देयर, दे वुड अग्री विथ मी ऑन दिस. ठीक है, चलो आगे बढ़े. एंड इसका मैथमेटिकल इक्वेशन बहुत ज्यादा, मतलब सिंबॉलिक इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग दिखाते हैं एज एल. लाइक quantity of x depends upon the function of L, where this L is your labor and labor is your variable factor. And long run production function में K और L दोनों आ जा रहे हैं. K is your capital and L is your labor. Capital हो गया fixed factor and labor हो गया variable factor. ठीक है, चले आगे बढ़े. नाउ 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है ऑलरेडी बता दिया. 3 concepts of production. Here are the 3 concepts of production: total product, average product and marginal product. Now total product क्या है? Total output which is produced by combining fixed and variable factor. Remember that whatever we are going to study in detail, that is associated with the short run production function behavior. यहाँ पे long run production function जो है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस इज नॉट देयर इन आईएससी. ठीक है, सो 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन है. टोटल प्रोडक्ट मींस टोटल आउटपुट, कितना आउटपुट बनेगा जब फिक्स फैक्टर को वेरिएबल फैक्टर के साथ कंबाइन करेंगे. एवरेज का मतलब हो गया कि पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर, यानी जितने भी लेबर्स हम लोग यूज कर रहे हैं ऑन एन एवरेज एक एक लेबर कितना बनाता है. एंड मार्जिनल का मतलब होता है चेंज या एडिशनल. मैथमेटिकली स्पीकिंग मार्जिनल इज स्लोप. तो अगर आप एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर को हायर करते हो, if you add one more variable factor, how will your production change? How will your output change? That is what marginal product indicates. इतना समझ आया आपको? निकाला कैसे जाएगा? अगर हम लोग सबसे पहले तो मार्जिनल प्रोडक्ट को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली सब समझ आ जाएगा. मार्जिनल प्रोडक्ट का एक सर्टेन बिहेवियर होगा जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. उसी को अगर आप सम अप करते जाओ, इफ यू गो ऑन एडिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, आपका टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा. इसीलिए देखिए फॉर्मूला क्या लिखा है, टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट. वहीं टोटल प्रोडक्ट को अगर डिवाइड कर दे आप लेबर से तो आपका एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा. एंड मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का 2 तरीका है. या तो आप टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1 कर लो. टीपीएन का मतलब हो गया प्रेजेंट टोटल प्रोडक्ट माइनस प्रीवियस. ठीक है, प्रेजेंट माइनस प्रीवियस कर लो तो भी आ जाएगा. या फिर एक और तरीका है चेंज इन टीपी, टोटल प्रोडक्ट कितना से चेंज हुआ डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, कितना वेरिएबल फैक्टर आपने ऐड किया है, उससे भी आपका आ जाएगा. ठीक है, यस जॉन सिन्हा, शाउट आउट टू यू. अब भाई शांत हो जा, थोड़ा पढ़ाई कर ले. चलो ठीक है, आगे बढ़े. नाउ टॉकिंग अबाउट इन डेप्थ analysis of the law of variable proportion, behavior of short run production function, या इसको return to a factor भी बोला जाता है. लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को रिटर्न टू अ स्केल बोला जाता है. प्लीज इस बात को याद रखिएगा. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. बाय लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ का मतलब हुआ रूल, वेरिएबल इज द फैक्टर and proportion is the quantity that you are adding. So अगर हम लोग continuously variable factor के proportion को increase करते जाए तो जो हमारा outcome है, resultant output है, वो कैसे change होगा, वही आपका law of variable proportion समझाता है. बट वहीं अगर लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो, यानी आप एक नया प्लांट लगा सकते हो, आप नया लैंड ले सकते हो एंड उसके साथ साथ वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ा सकते हो, मतलब पूरा प्रपोर्शन ऑफ फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, तो उसका रिटर्न क्या आएगा, उस रिटर्न को रिटर्न टू अ स्केल
बोला जाता है। आपने शार्क टैंक में देखा होगा बहुत बार नमिता नमिता जो है वो बोलती है कि आई वुड नॉट लाइक टू इन्वेस्ट बिकॉज आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू स्केल अप योर बिजनेस। ये स्केल अप करने का मतलब क्या होता है कि जब आपको बड़ा क्वांटिटी में खेलना होगा, एक्सपैंड करना होगा, शायद आप नहीं कर पाओगे या रिसोर्सेस का इनसफिशिएंसी हो जाएगा, उसको रिटर्न टू अ स्केल बोलते हैं। आ गया समझ में क्या होता है? सो इन डेप्थ हमें समझना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को। नाउ चलो इसको इन डेप्थ समझते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट में जाने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। आपको हमेशा इस इक्वेशन को याद रखना है समझने के लिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। आपको कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये इक्वेशन को लिख लो। हम लोग क्या जानते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज एसोसिएटेड विद शॉर्ट रन, राइट? और हमने शॉर्ट रन में सीखा कि शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पॉसिबल है। शॉर्ट रन में जब सप्लाई कर रहे थे तब हमने सीखा कि शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पॉसिबल है, बट कैसे? ओनली बाय एडिंग मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। ऑन द अदर हैंड फिक्स फैक्टर्स जो होते हैं शॉर्ट रन में वो कांस्टेंट रहते हैं। सो अगर आउटपुट को बढ़ाना है, if we want to increase the output in the short run, it can only be done by increasing your variable factors while your fixed factors will remain constant. ठीक है, इतना गया आपके दिमाग में? अंडरस्टूड टिल हियर? अंडरस्टूड टिल हियर? चले आगे चले। तो बिहेवियर कैसा होगा अगर हम लोग कॉन्स्टेंटली वेरिएबल फैक्टर्स को ऐड करते जाए फिक्स फैक्टर के साथ? तो बिहेवियर कैसा होगा? किसका बिहेवियर? आउटपुट का बिहेवियर कैसा होगा? सबसे पहले तो अगर आप कंटिन्यूअसली वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाओगे फिक्स फैक्टर में, तो इनिशियली ऐसा होता है ना कि मैंने लैंड का एग्जांपल के थ्रू समझाया था इनिशियल डेज में जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैं उसी एग्जांपल से वापस चेक अराउंड करूंगा। दैट सपोजिटली एक लैंड है जो कि आपको 150 क्विंटल ऑफ क्रॉप्स दे सकता है, ठीक है? अ लैंड व्हिच कैन प्रोवाइड यू 150 क्विंटल ऑफ क्रॉप, बट उस पे एक ही लेबर अगर काम कर रहा है, या उस पे अगर मान लो इनिशियली 0 लेबर काम कर रहा है, कोई लेबर काम नहीं कर रहा है, तो आपका प्रोडक्शन क्या होगा? नथिंग, नील, कुछ भी नहीं होगा। बट वहां पे अगर एक ही लेबर काम करेगा तो क्या पॉसिबल है कि एक लेबर पूरा फिक्स फैक्टर को कंप्लीटली यूटिलाइज कर ले? ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हो इनिशियल फेजेस में, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वन पर्सन to make use of each and every resources, or it is not possible that one person will possess all kinds of skills and aptitude which is required to undertake production. And that is why आपका जो फिक्स्ड फैक्टर्स रहता है वो थोड़ा सा अंडर यूटिलाइज रहता है या अनयूटिलाइज रहता है, बोल के जब आप क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते हो इनिशियल स्टेज में, तो पहले आपको इंक्रीजिंग रिटर्न देखने मिलता है। So सबसे पहले if we continuously increase our variable factor onto given amount of fixed factor, please do not write constant once again, write the keyword given. Why? क्योंकि fixed factors को बाद में long run में बढ़ा सकते हैं, हमेशा के लिए constant नहीं रहेगा, सिर्फ short run में constant है। So when more and more of fixed factors are added to the given quantity of fixed factor, initially we get to experience increasing return. पहले काम बहुत तेजी से होता है। सिंपल एग्जांपल में मान लो आपको आज आर्यन ट्यूटोरियल में मैं यहाँ चिल्ड्रंस डे होस्ट करता हूँ, हर साल डिफरेंट थीम्स होते हैं। इस साल का थीम जो था हमारा बैंड बाजा बारात का था, ठीक है? उसमें क्लास 11 ज्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं पूरा इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ चिल्ड्रंस डे कम फेयरवेल फॉर क्लास 12 एज वेल। तो मान लीजिए अगर मेरे को अकेले सब कुछ अरेंजमेंट करना होगा तो आई वोंट बी एबल टू डू इट, because I cannot devote my time to catering, to decoration, to आपका invitation planning, उसके बाद रील्स भी बनाना है, फिर मार्केटिंग भी करना है, इंस्टाग्राम में पोस्ट भी करना है, बहुत सारा काम है, अकेले एक इंसान के लिए करना पॉसिबल नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड मैं जैसे ही 4 स्टूडेंट्स को ले आऊं अपने साथ एंड काम को डेलीगेट कर दूं, कॉमर्स में सोचो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, वो अप्लाई होता है यहाँ पे। सो 4 स्टूडेंट आ जाएंगे, 4 स्टूडेंट को जब आपका काम दे दिया जाएगा, दैट वर्क विल हैपन बेटर, and that is why more effectively and efficiently a person will be able to work. इसीलिए increasing return experience करने मिलता है initial stage में, ठीक है? सो अब आर्यन सर के साथ अगर 4 स्टूडेंट्स आ गए एक इवेंट को प्लान करने के लिए, चलो काम बहुत अच्छा चल रहा है। अब उसके बाद अगर हमें लगता है कि कुछ और लोग का जरूरत है थोड़ा बहुत काम निपटाने के लिए, तो हम लोग अगर और एडिशनल वर्कर्स को हायर करेंगे या पर्सन्स को हायर करेंगे फॉर वर्क, तो वो बचा कुचा काम करेगा।
क्योंकि मेन काम तो सारा हो गया। सपोजिटली आर्यन सर हैंडल कर रहे हैं केटरिंग का, कोई एक्स स्टूडेंट हैंडल कर रहा है डेकोरेशन का, कोई एक्स स्टूडेंट हैंडल कर रहा है आपका इन्विटेशन का, somebody else is handling the events कि जो होगा, मतलब गेम्स होगा, डांस होगा, कैसे क्या तैयारी होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड somebody else is handling सोशल मीडिया। 5 जन मिलके पूरा चला रहे हैं। हमने और कुछ लोगों को हायर किया कि हमारे बिहाइंड, जब हमारे एब्सेंस में कुछ देख रेख या सुपरविजन करना हो तो वो लोग करेगा। तो वो लोग क्या काम कर रहे हैं? वो लोग मेन काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग बचा कुचा काम कर रहे हैं। दैट इज वाई देयर कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी देयर। वो लोग कॉन्ट्रीब्यूट तो कर रहा है बट इंक्रीजिंग प्रपोर्शन में नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। देन दे स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द डिक्रीजिंग प्रपोर्शन। सो डिक्रीजिंग रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा एक पॉइंट के बाद। इसका कारण क्यों होता है? क्योंकि जो फिक्स्ड टू वेरिएबल फैक्टर का एक हमेशा राइट प्रपोर्शन होता है। इसका अनदर एग्जांपल आई कैन गिव यू इज 2 अवन। अगर आपके पास, आप एक बेकरी चलाते हो, आपके पास 2 अवन है, तो मेरे हिसाब से 2 अवन को फुल्ली ऑप्टिमली यूटिलाइज करने के लिए 6 वर्कर्स मोर देन इनफ है। वाई डू आई से 6 वर्कर? 2 लोग बैटर बनाएगा, 2 लोग बेक करेगा एंड 2 लोग आइसिंग करेगा। हाँ, उसके बाद पैकिंग करने के लिए शायद आप एक बंदा को या 2 बंदा को हायर कर सकते हो। बट मान लो अगर आपने 2 बंदा हायर कर लिया फॉर मेकिंग, लाइक एडिशनल 2 वर्कर्स आर देयर फॉर मेकिंग बैटर, मतलब 4 लोग बैटर बना रहे हैं लेकिन अवन तो 2 ही है, टाइम तो उतना ही लगेगा। सो इट मेक्स नो सेंस। इसीलिए हो सकता है केक का क्वांटिटी बढ़ जाए लेकिन इंक्रीजिंग प्रपोर्शन से नहीं बढ़ के डिक्रीजिंग प्रपोर्शन से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जहां 6 वर्कर मिलके अगर एक दिन में 10 केक बना रहे थे, तो हो सकता है कि 12 वर्कर मिलके एक दिन में सिर्फ 13 केक बनाए। 6 वर्कर 10 केक, लेकिन 12 लोग मिलके सिर्फ 13 केक बना पाए। इस टाइप का कुछ होगा। या 20 वर्कर मिलके शायद एक दिन में 15 केक ही बना पा रहे, सेम प्रपोर्शन से ना बढ़े। क्यों? क्योंकि अवन 2 है। इज दैट क्लियर? एंड अगर मोर देन रिक्वायर्ड वर्कर को, एक बार आपका जितना टोटल आउटपुट आ सकता है अगर वो आ गया, उससे ज्यादा वर्कर अगर आपने हायर कर लिया, तो उसके बाद फिर नेगेटिव रिटर्न आना स्टार्ट हो जाता है, जिसको इडियोमैटिकली, ईडीएम के तौर पे हम लोग बोलते हैं टू मेनी कुक स्पॉइल्स द ब्रॉथ। मोर देन रिक्वायर्ड वर्कर अगर काम करेगा, इट इज गोइंग टू स्पॉइल द एंटायर थिंग। दैट इज योर नेगेटिव रिटर्न। Am I crystal clear till here? So if we continuously go on adding more and more of variable factor on the given amount of fixed factor, the initial return will be increasing, eventually it will be decreasing, and lastly it will lead to a negative return. हालांकि this is regarded as absurdity stage of economic nonsense। यहां तक कोई पहुंचेगा ही नहीं। लोग decreasing return के बाद जहां पे maximum आएगा वहीं पे आके रुक जाएंगे। चले आगे बढ़े, स्केड्यूल के साथ सॉल्व करें एंड देन ग्राफिकली सॉल्व करें इसको। एम आई क्लियर टिल हियर गाइस? समझ आया कि नहीं इतना? हाँ बोलो, कुछ बोलो। थैंक यू सो मच के आर गेमिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। अरे भाई इंग्लिश से मूव ऑन कर जाइए, जस्ट मूव ऑन फ्रॉम इंग्लिश। चलो लेट्स गो अहेड। अब इसी को पूरा समझते हैं स्केड्यूल के थ्रू। तो हमने बिहेवियर क्या समझा? बिहेवियर समझा कि पहले आएगा इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर आएगा डिक्रीजिंग रिटर्न, एंड देन वी विल गेट नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्ट अगर बना लेते हो, कोई भी चैप्टर में अगर आपको मार्जिनल का कॉन्सेप्ट यानी स्लोप समझ में आता है, तो ऑटोमेटिकली आप टोटल एवरेज सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है, बिकॉज रिमेंबर दैट मार्जिनल, इको में मार्जिनल मीन्स स्लोप, मैथ्स का स्लोप। स्लोप मतलब हो गया m विच इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, जिसको मैथमेटिकली बोलते हैं y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है, एंड यही स्लोप क्या करता है? डिटरमाइन करता है। क्या डिटरमाइन करता है? डिटरमाइंस द शेप। किसका शेप? शेप ऑफ टोटल। मार्जिनल डिटरमाइंस द शेप ऑफ टोटल। अगर मार्जिनल बढ़ रहा होगा तो टोटल हमेशा इंक्रीजिंग प्रपोर्शन से बढ़ेगा, मार्जिनल घट रहा होगा तो टोटल हमेशा डिक्रीजिंग प्रपोर्शन से बढ़ेगा, क्योंकि जब तक मार्जिनल पॉजिटिव रहेगा वो हमेशा टोटल को बढ़ाएगा। बट अगर मार्जिनल खुद बढ़ेगा तो टोटल इंक्रीजिंग प्रपोर्शन से बढ़ेगा। मार्जिनल घटने के बावजूद अगर पॉजिटिव रहेगा तो भी टोटल डिक्रीजिंग प्रपोर्शन से बढ़ेगा। एंड मार्जिनल अगर कांस्टेंट रहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू याद कर लो, तो भी आपका टोटल कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा। सो जब तक मार्जिनल पॉजिटिव है तब तक टोटल हमेशा बढ़ता है, बट मार्जिनल खुद बढ़ रहा है या घट रहा है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि टोटल बढ़ेगा
इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन से बढ़ेगा, डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन से बढ़ेगा, या कांस्टेंट प्रोपोर्शन से बढ़ेगा, या फिर घटेगा। आई होप इतना बात आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, ठीक है। सो यहां पे हम लोग ले लेंगे, over here we are going to take labor, then marginal product, then total product, and then your average product, ठीक है। स्टार्टिंग विद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही अभी रखता हूं, देखते हैं अगर और लगेगा तो ले लेंगे। रिमेंबर दैट जीरो लेवल पे कभी भी मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होता है, गलती से भी उसको जीरो मत लिख दीजिएगा, नहीं तो आपका आधा नंबर डिडक्टेड, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट इज निल या फिर आप डैश लगा दीजिएगा, बिकॉज देयर इज नो चेंज व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग नथिंग। चेंज ऑलवेज स्टार्ट्स टू टेक प्लेस विद द फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपने क्या करना है, इंक्रीजिंग रिटर्न है, डिक्रीजिंग रिटर्न है, नेगेटिव रिटर्न है, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करो, आपका शेड्यूल कभी गड़बड़ नहीं होगा। आपको फ्रैंक का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप शुरू करिए, आप शुरू करिए 20 के साथ, ठीक है। आप 20 ले लो, 20 30 40 हो जाएगा, सबसे 10 से खाली बढ़ाना है, 20 30 40। अब ठीक इसका उल्टा लिखो, इनवर्स लिखना स्टार्ट करो, 30 20 10। तो ये आ गया आपका इंक्रीजिंग रिटर्न 40 तक, ये आ गया आपका डिक्रीजिंग रिटर्न। एक पॉइंट के बाद चेंज भी तो जीरो होगा। मोर देन अगर रिक्वायर्ड वर्कर को हायर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एक वर्कर खाली बैठा रहेगा, वो कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, सो उसका होना नहीं होना एक ही बराबर है, सो दैट इज वाई जीरो। एंड देन उसके बाद अगर मोर देन रिक्वायर्ड वर्कर को आप हायर करते हो, देन योर नेगेटिव रिटर्न स्टार्ट्स टू टेक प्लेस, -10 एंड -20। देखो तो आपको डिफिकल्ट लगा, ये याद करने में आपको कुछ भी डिफिकल्टी आ रहा है? इट इज सिंपल, इंक्रीजिंग रिटर्न का 20 30 40 उल्टा लिखना है, 30 20 10 0 -10 -20 हो जाएगा, इजी पीजी सबके लिए, श्योर। अब हमें अगर टोटल निकालना है मार्जिनल से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग खाली मार्जिनल को अगर सम अप करते चले जाए तो हमें हमारा टोटल मिल जाएगा। सो फटाफट से एड ऑन करना शुरू करते हैं, लेट्स ऐड क्विकली टू डिराइव टोटल प्रोडक्ट। पहला आ जाएगा 0, when you are producing nothing, total product is 0, 0 plus 20 is 20, plus 30 is 50, plus 40 is 90, plus 30 is 120, plus 20 is 140, plus 10 is 150, plus 0 is 150, then again 140 and then 120। क्या आपको कोई भी मेहनत लगा यहाँ पे कि स्केड्यूल मेरे को टफ लग रहा है, नहीं समझ आ रहा है? अगर आप फ्रैंक का स्केड्यूल उठाओगे तो आपका माथा घूम जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा ऐसा नंबर दिया है कि आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। सिर्फ रटने से काम नहीं होगा, समझना भी पड़ेगा, ठीक है, गॉट इट। एंड अब निकालते हैं एवरेज प्रोडक्ट, बट बिफोर, इससे पहले मैं एवरेज प्रोडक्ट पे जाऊं, मैं फटाफट से एनालिसिस करना चाहूंगा, ठीक है। आई वांट टू एनालाइज मार्जिनल एंड टोटल प्रोडक्ट। नाउ यहां से यहां तक, मतलब अप टिल 0 से लेके थर्ड यूनिट तक हो गया मेरा इंक्रीजिंग रिटर्न, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद टेक्निकली देखा जाए तो थोड़ा सा और इंक्रीजिंग रिटर्न आएगा, मैं दिखाता हूं वो क्यों आएगा, ठीक है। टेक्निकली योर इंक्रीजिंग रिटर्न विल कम टिल फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट, विल कम टू दैट कि क्यों आएगा। ये हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न। उसके बाद जब मार्जिनल डिक्रीज कर रहा है, अप टिल 0 हो जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न, एंड देन उसके बाद आ जाएगा आपका नेगेटिव रिटर्न। सबसे पहले रिलेशनशिप बात करते हैं मार्जिनल एंड टोटल के बारे में। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जब तक मार्जिनल पॉजिटिव रहेगा वो हमेशा टोटल को बढ़ाएगा। पहले तो आप देखो ये बात सही है कि नहीं है, जब तक मार्जिनल 0 नहीं हो गया, यानी 20 से लेके 10 के बीच का जो जोन है, जब तक मार्जिनल यहां 10 तक पॉजिटिव था, वो टोटल को कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया है। यस और नो, yes or no, 20 50 90 120 140 150 टोटल इंक्रीज किया है कि नहीं किया है? yes it has increased, agreed। सो पहला रिलेशनशिप तो क्लियर। अब उसके बाद ऑब्जर्व करो कि मार्जिनल का इनिशियल बिहेवियर कैसा है। सबसे पहले मार्जिनल इंक्रीजेस, राइट, अप टिल हियर मार्जिनल इंक्रीजेस, यहां तक मार्जिनल इंक्रीज कर रहा है, एंड देन उसके बाद मार्जिनल डिक्रीजेस, ठीक है, एंड देन मार्जिनल डिक्रीजेस, करेक्ट। तो जब तक मार्जिनल इंक्रीज कर रहा है, टोटल किस प्रपोर्शन से बढ़ा है? कितना का डिफरेंस है? 20। कितना का डिफरेंस है? 30। कितना का डिफरेंस है? 40। 20 30 40, मतलब टोटल प्रोडक्ट
is increasing at an increasing rate. Agreed, everybody? Are you all on the same page with me? उसके बाद when marginal is decreasing, देखो marginal decrease हो रहा है बट पॉजिटिव है, जब तक जीरो नहीं हो जा रहा है. Marginal is decreasing बट पॉजिटिव. कितना का डिफरेंस है? 30. कितना का डिफरेंस है? 20. कितना का डिफरेंस है? 10. कितना का डिफरेंस है? 0. So when marginal is decreasing, total is still increasing but at a decreasing rate. Diminishing rate. वेट आई टेल यू व्हाई इंक्रीजिंग रिटर्न. वेट मैं बताता हूं कि वहां तक क्यों लिया है. हैंग ऑन, बताते हैं. ठीक है, सो ये हो गया आपका डिमिनिशिंग रेट. तो इससे आपका तीन रिलेशनशिप तो निकल गया. एज लॉन्ग एज मार्जिनल इज पॉजिटिव, टोटल इज टू इंक्रीज. व्हेन मार्जिनल इंक्रीजेस, टोटल इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट. व्हेन मार्जिनल डिक्रीजेस, टोटल इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट. तीन नहीं, सॉरी, हाँ तीन निकल गया, तीन रिलेशनशिप आ गया. चौथा रिलेशनशिप, when marginal becomes equal to zero, ये वाला जोन, when marginal becomes equal to zero, देखो तो क्या टोटल अपने मैक्सिमम पे है, मतलब जितना आ सकता था उतना आ गया, and it remains constant. So third relationship is that when marginal product is equal to zero, total product reaches maximum and remains constant. Do you all agree? Do you all agree? एंड व्हेन मार्जिनल गोज नेगेटिव, जैसे ही मार्जिनल नेगेटिव जाना शुरू हो गया, क्या टोटल रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है. सो व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव, टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन. ये बन गया आपका रिलेशनशिप. दिस इज योर रिलेशनशिप. इजी पीजी, सही बात है, समझ में आ गया सबको? क्या यहां तक थिंग्स आर क्लियर गाइस? नो नो, वन सेकेंड. जो आपका इंक्रीजिंग रिटर्न मैंने फोर्थ तक किया है, कोई कारण से किया है, वेट करिए, बता रहा हूं. ठीक है, वेट करिए, आपको बता रहे हैं. ठीक है, यहां तक क्लियर है. अब आपका कॉन्स्टेंटली सवाल आ रहा है कि आपने फोर्थ यूनिट को क्यों लिया है एज एन इंक्रीजिंग रिटर्न. आइए इसका रीजन समझते हैं. देखो, उसके लिए हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रोडक्ट को. एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलेगा आपका? एवरेज प्रोडक्ट इज टोटल प्रोडक्ट बाय लेबर. ठीक है, तो डिवाइड करना शुरू करते हैं. 0 by 0 विल बी निल, नथिंग. 20 by 1 will be 20, 50 by 2 will be 25, 90 by 3 will be 30, 120 by 4 will be 30. हम लोग इंक्रीजिंग रिटर्न वहां तक लेते हैं जहां तक ऑन एन एवरेज जब तक सारे लेबर का आउटपुट ना बढ़ रहा हो तब तक. आप याद करिए, आप जब ग्राफ बनाते हैं, आपका स्टेज 1 कहां कंप्लीट होता है? स्टेज 1 वहां कंप्लीट होता है जहां पे मार्जिनल बिकम्स इक्वल टू एवरेज. तो क्या वो स्टेज यहां नहीं है? क्या यहां मार्जिनल और एवरेज बराबर नहीं हो रहा है? 30 and 30. दैट इज वेयर योर स्टेज 1 गेट्स ओवर. अब याद आ गया सबको, इसीलिए मैंने फोर्थ लेवल तक स्टेज 1 लिया. आई मीन फोर्थ यूनिट ऑफ आउटपुट तक स्टेज 1 लिया, वेयर एमपी इज टू बिकम इक्वल टू एपी. क्लियर हो गया सबको? इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ा जाए. ठीक है, उसके बाद 140 by 5 क्या हो जाएगा? नाउ आई ऑल्सो नीड अ कैलकुलेटर. आई एम नॉट वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, although I'm good at mathematical concepts. 140 divided by 5 is 28. 150 by 6 is 25. 150 by 7 is 21.4. 140 by 8 is 17.5 and 120 by 9 is 13.33. ये आ गया आपका एवरेज प्रोडक्ट का बिहेवियर. अब अगर इंडिविजुअल बिहेवियर का बात करें, इंडिविजुअल बिहेवियर, तो इंडिविजुअल बिहेवियर में एवरेज प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीजेस, बिकम्स कांस्टेंट एंड देन इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन. ठीक है, देन इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन. Am I clear up till here? सबको समझ आया? अब ग्राफ का बारी.
ग्राफ का बारी, आप देखो ग्राफ भी कैसे बनता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपने मेरा डिटेल्ड वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा, अब उतना टाइम नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता दूं। दिस इज योर डायग्राम फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। कुछ इस टाइप से इंक्रीजिंग रिटर्न बनता है, विच इज रिगार्डेड एज कॉनकेव अपवर्ड। मैंने अपने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो में एक एक नंबर को प्लॉट करके दिखाया था, एक एक नंबर को प्लॉट करके दिखाया था समझाने के लिए कि वो कैसा शेप निकल के आएगा। तो उसमें अगर आपको याद होगा तो आपने देखा था कि ये कॉनकेव अपवर्ड है इंक्रीजिंग रेट के लिए, ठीक है। देन दिस इज रिगार्डेड एज कॉनकेव डाउनवर्ड, दिस इज कॉनकेव डाउनवर्ड which indicates increasing at a diminishing rate, ठीक है, which indicates increasing at a diminishing rate। यहां आएगा मैक्सिमम, यहां आएगा आपका मैक्सिमम, एंड देन उसके बाद ये वाला जोन हो जाएगा डिक्रीजिंग, ये जोन हो जाएगा डिक्रीजिंग, ठीक है। इसको हम लोग प्लॉट करते हैं तो हमें हमारा टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ मिल जाएगा। मैं इसको हटा दे रहा हूं, मार्जिनल वाला कॉन्सेप्ट को, आ जाइए ग्राफ बनाते हैं। वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस, यहां आ जाएगा आपका लेबर, यहां आ जाएगा आपका टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक इसके नीचे, ठीक इसके नीचे एक और ग्राफ बनेगा, जहां पे आप लिखोगे एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट से ही शुरू करते हैं। वी नो दैट टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड देन इट इंक्रीजेस एट ए डिमिनिशिंग रेट। तो ये हो गया आपका इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। इस टाइप से आप बनाएगा कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है। देन पुट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड देन इट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट लाइक दिस। सबको यहां तक क्लियर है कि कैसे बनेगा? सबको यहां तक क्लियर है? जस्ट 1 second. Mr. Mandal, I want to ask you one thing before I remove you. Then what are you doing on my channel? Why are you even checking out my videos? आप जाके देखिए ना, आपको जिसका भी वीडियो देखना है। Coming and nagging teachers with somebody else's name. गजब है भाई। क्या आपको पैसा मिल रहा है पीआर करने का लोगों का? नहीं ना। तुमको भाई जो भी पसंद है उसका वीडियो जाके देखो, नो इश्यूज विद दैट। डोंट fill my comment section anything apart from studies. Idiotic students are irritating. चल ठीक है, सो इट इज कॉन्केव अपवर्ड। इसका कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स नेम इट समथिंग, पॉइंट ए। दिस पॉइंट ए इज रिगार्डेड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो अप टिल हियर इट इज कॉन्केव अपवर्ड एंड देन इट इज कॉन्केव डाउनवर्ड। नाउ रिलेशनशिप को याद करिए, आफ्टर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब जहां से टोटल प्रोडक्ट अपना स्लोप को चेंज करता है, स्केड्यूल के हिसाब से देखो, टोटल प्रोडक्ट यहां तक इंक्रीज किया है इंक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट हैज इंक्रीज अप टिल हियर एट इंक्रीजिंग रेट एंड देन इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। सो अप टिल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, up till point of inflection total product is increasing at an increasing rate, so यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा एंड देन उसके बाद जहां पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट वहां जीरो होता है, तो यहां से एक सेकंड परपेंडिकुलर को आपको ड्रॉप करना है, ठीक है। दोनों का डायग्राम एक साथ बनाएंगे तो बहुत ज्यादा क्लमजी लगेगा, सो माय एडवाइस इज डोंट डू इट। नाउ रिलेशनशिप को याद करो, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज टू इंक्रीज। बढ़ा दिया मैंने मार्जिनल प्रोडक्ट को। When total product increases at an increasing rate, marginal product is to increase. When total product increases at a diminishing rate,
मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेस, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेस व्हेन टोटल प्रोडक्ट रीचेज इट्स मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू जीरो, तो यहां आ जाएगा एमपी इक्वल टू जीरो, एंड व्हेन टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, स्टार्ट्स टू फॉल, मार्जिनल प्रोडक्ट गोज नेगेटिव। ये हो गया आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया सबको? क्या हुआ? डिक्रीजेस, बिकम जीरो एंड देन मार्जिनल टर्न्स नेगेटिव। चलिए दूसरा बिहेवियर देखते हैं। अब मार्जिनल और एवरेज को अगर ध्यान से समझे, उसके लिए मैं क्या करता हूं, लेट मी जस्ट रिमूव दिस एंटायर थिंग। टोटल प्रोडक्ट को कर दिया हमने गायब। अब हमारे लिए समझना थोड़ा हो जाएगा आसान। आप ध्यान से देखो, पहला लेवल पे 2020 बराबर है। नाउ आईएससी फ्रैंक इकोनॉमिक्स में ये जो डायग्राम है गलत दिया हुआ है, बट हम लोग गलत डायग्राम ही फॉलो करेंगे बिकॉज फ्रैंक इज लाइक बाइबल फॉर द टीचर्स। टेक्निकली मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट इज टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट। माय बैड, इट इज टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट। टेक्निकली यहां से शुरू होना चाहिए था दोनों, बट क्योंकि उन्होंने ये ऐसे टच करके दिया हुआ है तो वी कांट डू इट, वी कांट हेल्प इट, हमें यही बनाना पड़ेगा जो उनके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। सो एवरेज प्रोडक्ट विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ये जो सेम पॉइंट पे दोनों स्टार्ट हो रहा है उसके वजह से। उसके बाद आप क्या देख पा रहे हो, उसके बाद आप देख रहे हो कि मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा है, मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा है, एंड देन दोनों में इक्वालिटी आ रहा है, 30-30 इक्वल हो जा रहा है। मतलब जब तक एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है और दोनों का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तब तक एवरेज प्रोडक्ट इज टू इंक्रीज। मतलब एवरेज प्रोडक्ट कहां तक बढ़ेगा, एवरेज प्रोडक्ट वहां तक इंक्रीज करेगा जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन ना हो जाए। टिल द टाइम marginal product is greater than average product is to increase. Is that clear? जैसे ही marginal product and average product they intersect, जैसे ही they intersect 30-30 हो गया, average product becomes constant, so average product वहां पे रुक जाएगा। एंड जैसे ही एवरेज प्रोडक्ट ने ओवरटेक किया मार्जिनल प्रोडक्ट को, when average becomes more than marginal or marginal becomes less than average, average starts to decline, average product starts to fall, AP starts to decline. But my question, can AP be ever, can AP be ever be equal to zero or negative? क्या average product कभी भी zero या negative हो सकता है? The answer is no. Average product can never be zero or negative. क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर, एंड सिंस टोटल प्रोडक्ट कभी जीरो नहीं हो सकता है, मतलब अगर न्यूमरेटर में जीरो का वैल्यू नहीं बैठेगा तो फाइनल आंसर जीरो नहीं आएगा। दैट इज व्हाई एपी कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो और नेगेटिव। बोल के एवरेज प्रोडक्ट कैन नेवर टच द होराइजोंटल एक्सिस, ठीक है, इट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस। एम आई क्लियर अप टिल हियर? क्या सबको समझ आया यहां तक मैंने क्या बोला? इज दैट क्लियर? तो आपका थर्ड परपेंडिकुलर कहां से जाएगा? आपका थर्ड परपेंडिकुलर जाएगा वहां से जहां पे एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाउ यहां इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, इंटरसेप्ट नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो यहां से जाएगा आपका थर्ड परपेंडिकुलर। यस, सेकंड स्टेज इज द फेवरेबल स्टेज फॉर प्रोडक्शन, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो अब स्टेज वन कहां तक मार्क होगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। जहां तक एवरेज प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पे ना आ गया हो वो कहलाएगा आपका स्टेज वन, मतलब यहां तक, ये जोन तक होगा आपका स्टेज वन। सेंटर में होगा आपका स्टेज टू जहां से एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, एंड देन उसके बाद आएगा आपका स्टेज थ्री विच इज द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न। इज दैट क्लियर? एक्सप्लेनेशन आप खुद से अब कर लेगा ना, that under stage 1 TP increases at a diminishing rate while marginal product increases and starts to fall but remains positive. Average product under stage 1 continuously increases and this stage ends where average product reaches its maximum and becomes equal to marginal product. ये आप कर लेगा।
स्टेज 2 में टोटल प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम. Marginal product continues to fall and becomes equal to zero, where TP reaches its maximum. And then आपका average product starts to decline but remains positive. ठीक है. उसके बाद when total product starts to decline in stage 3, marginal product crosses the horizontal axis and turns negative. Average product continues to fall in stage 3 but remains positive throughout and can never be equal to zero. So if your school is saying that do not start from origin, start from first, amazing, nothing like it, वही करना चाहिए. हमारे स्कूल यहाँ पे फॉलो कराते हैं कि आपको फ्रैंक का फॉलो करना है. You have to follow what is given in the frank. मैंने आर्ग्यूमेंट किया था टीचर्स के साथ, बट उन्होंने मेरे को जस्टिफिकेशन देना स्टार्ट कर दिया. Although I was not satisfied with the justification, but ultimately they themselves have to correct paper. So if your school is saying that average product and marginal product is to start from the first unit of output, origin से मत शुरू करिए, perfect, that is the right concept, नहीं होना चाहिए, follow that. But then if your school is asking you to follow frank जिस पे origin से शुरू हुआ है, follow that. ठीक है. नहीं, स्टेज 1 कुछ रॉन्ग नहीं, आपको देखना है, आप जाके देख लीजिए. टिल एवरेज प्रोडक्ट रीचेस इट्स मैक्सिमम, वहां तक स्टेज 1 होगा. भाई 10 साल से पढ़ा रहा है, क्या रॉन्ग बोल रहा है आप? रॉन्ग नहीं है ब्रो. मतलब ऐसा लगता है कोई बेइज्जत कर दिया है. स्टेज 1 टिल जहां पे आप फ्रैंक टेक्स्ट बुक को खोलिए, वापस से गो थ्रू करिए. आप शायद भूल गए या इकोनॉमिक्स आपने ठीक से नहीं किया. ब्लू फिनिक्स, go and check out your frank textbook. It is absolutely correct. Guys, is it correct or not? Yes, it is correct. ठीक है, चले आगे बढ़े. Now, talking about the relationship between MP and AP, मैं आपको कुछ यूनिवर्सल बिहेवियर समझा रहा हूं. आपने सीखा होगा that if MP is greater than AP, AP is to increase, right? ये बात सही है, ऐसा हो भी रहा है. जब तक MP is greater than AP, AP is rising. Second relationship आपने सीखा होगा that when MP is equal to AP, AP is constant. Now, क्योंकि आप प्रोडक्शन का बात हो रहा है, बोल के मैक्सिमम एंड कांस्टेंट है. कॉस्ट होगा तो वहां पे मिनिमम एंड कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट इज कॉमन, कांस्टेंट होना ही है, राइट? सो यहां पे AP हो जाएगा कांस्टेंट वेयर MP इज इक्वल टू AP. एंड तीसरा होता है व्हेन MP इज लेस देन AP, AP फॉल्स, AP स्टार्ट्स टू डिक्लाइन. ये आपने सीखा है, व्हेन MP इज लेस देन AP, AP डिक्लाइंस, फॉल्स. ये जो रिलेशनशिप है, इसका लॉजिक जो है ना, वो यूनिवर्सल है. इट इज अ यूनिवर्सल लॉजिक या यूनिवर्सल लॉ आप बोल सकते हो. कैसे, आइए इसको प्रूव करके दिखा देते हैं. सपोजिटली मैं मार्क्स का अगर बात करूं, ठीक है, लेट मी टॉक अबाउट मार्क्स. मैं लूंगा मार्जिनल मार्क्स, देन मैं लूंगा टोटल मार्क्स, देन मैं लूंगा एवरेज मार्क्स. ठीक है, आपने फर्स्ट एग्जाम दिया, आपको आया 80. आपने फर्स्ट एग्जाम दिया, आपको आया 80. आपको टोटल कितना मिला? एक सब्जेक्ट में 80, आपका एवरेज क्या है? 80. अगर आपने सेकंड पेपर दिया, आपको आया 90. सेकंड पेपर दिया आपने, आपको आया 90. आपका टोटल क्या हो गया? 170. एंड 170 बाय 2 करोगे अगर, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 8 जा 16, 85. क्या ये बात सही है कि नहीं है? When marginal is increasing, average product is to increase. ठीक है, why? क्योंकि ये जो आप 90 देख रहे हो ना, ये जो आप 90 देख रहे हो ना, ये 80 के एवरेज से, मार्जिनल से ज्यादा है, इसीलिए. अब अगर आपने तीसरा सब्जेक्ट दिया जिसमें आपको आया 92, आप पकड़ लो, अगर आपको आया 92, क्या अभी भी 92 जो है, क्या अभी भी 92 जो है वो 85 से ज्यादा है? जी हां, ज्यादा है. तो आपका टोटल कितना आ जाएगा? 170 प्लस 92 विल बी 262, एंड 262 डिवाइडेड बाय 3 अगर आप करोगे तो 87.33 आएगा. देखिए उसका टेंडेंसी क्या है? एवरेज को बढ़ाने का. तो ये बात तो सही है कि जब आपका marginal is greater than average, as long as marginal is greater than average, average will always increase. यहां तक क्लियर सबको? अब मान लीजिए
मान लीजिए मैं अगर ऐसा कर दूं कि आपने तीसरा पेपर जो दिया उसमें आपको 92 की जगह 85 आया, यू गॉट 85, तो क्या ये 85 और 85 दोनों बराबर है कि नहीं है? मार्जिनल इज इक्वल टू एवरेज। आप ऐड करो, देखो क्या आएगा, 170 प्लस 85 विल बी 255, 255 एंड 255 डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे 85। सही बात है कि नहीं? मार्जिनल becomes equal to average, average remains constant. अब समझ आ रहा है क्या हो रहा है in life, what is happening? Are you all understanding? And जैसे ही आपने अगला पेपर दिया जिसमें आपको आया 40 मैथ्स दिया, आप बोलते हो ना कि एक एग्जाम अगर खराब हो गया, एक पेपर खराब हो गया तो पूरा एवरेज गिर जाएगा। सो अगर अगला पेपर में 40 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 295 एंड 295 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, कितना एवरेज आ जाएगा, 295 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 73.75। एक बार में आपका परसेंटेज पछड़ा गया, क्यों? क्योंकि दिस मार्जिनल इज लेस देन एवरेज, तो बोल के वो एवरेज को नीचे ले आया। नाउ गॉट द लॉजिक, क्या हो रहा है? सो इट इज अ यूनिवर्सल बिहेवियर कि अगर मार्जिनल ज्यादा रहेगा एवरेज से तो वो हमेशा एवरेज को बढ़ाएगा, मार्जिनल अगर बराबर रहेगा एवरेज से तो वो हमेशा एवरेज को रोक देगा, एंड इफ मार्जिनल विल बी लेस देन एवरेज, एवरेज इज टू फॉल। एम आई क्रिस्टल क्लियर विद द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट? मजा आ रहा है, समझ आ रहा है इकोनॉमिक्स? अब सर आप तो पर्सनल हो गया रियलिटी चेक फेंक के मार दिया। चलो आगे बढ़े। सो दिस विद दिस वी कंप्लीट द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट एज वेल। नाउ कमिंग टू द डिसीजन मेकिंग, एक रैशनल प्रोड्यूसर कौन से स्टेज पे प्रोडक्शन करना चाहेगा? स्टेज 2। हाउ डू वी डू इट? वी डू इट बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसको समझते हैं। स्टेज 3 में क्यों नहीं करेगा? क्योंकि स्टेज 3 में मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जा रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी गिर रहा है एंड टोटल प्रोडक्ट भी आपका फॉल हो रहा है। तो आफ्टर ऑल अगर मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब अगर मैं एक एडिशनल वर्कर को और हायर करता हूं, एक एडिशनल वर्कर को और हायर करता हूं एंड वो पूरा ओवरऑल सारा आउटपुट को गिरा देता है सारे वर्कर्स का, तो मैं उसको एडिशनल इनकम क्यों दूंगा? Why should I pay additional salary to an additional worker whose result is fall in the entire output of all the workers? So that is why stage 3 is the stage of economic absurdity or economic nonsense, कि वहां कोई भी ऑपरेट नहीं करेगा। अब आपका सवाल उठता है कि स्टेज 1 में क्यों नहीं करेगा? स्टेज 1 पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, थ्रू आउट स्टेज 1 एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है। आई अग्री कि मार्जिनल बढ़ने के बाद घट भी रहा है स्टेज 1 में। आफ्टर अ पॉइंट मार्जिनल इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग इवेंचुअली इट इज डिक्रीजिंग। सो हम लोग क्यों प्रोड्यूस करें स्टेज 1 में? बिकॉज मार्जिनल गिरने के बावजूद भी एवरेज से ज्यादा है। I agree that marginal is decreasing, but still it is greater than average. That means it has the tendency to increase the average product of all the worker. And that is why we cannot stop in stage 1, because if we stop anywhere midway, it implies we are not taking advantage of the fuller utilization of resources, or we are not taking fuller advantage of the rising productivity. जो हमारा आउटपुट बढ़ रहा है उसका पूरा एडवांटेज नहीं उठा रहे हैं, इसीलिए स्टेज 1 में नहीं करेगा, क्योंकि एपी एंड एमपी दे बोथ हैव द टेंडेंसी टू राइज। अब उसके बाद स्टेज 2 में क्यों ऑपरेट करेंगे? स्टेज 2 में इसीलिए ऑपरेट करेंगे क्योंकि एमपी एंड एपी भले डिक्रीज हो रहा हो, भले डिक्रीज हो रहा हो, बट पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर तो है। मतलब स्पेशली एमपी पॉजिटिव तो है, मतलब मैंने जो एक एडिशनल वर्कर को हायर किया, अगर वो मेरे को एक आउटपुट भी बना के दे पा रहा है, जब तक जीरो नहीं बना के एक आउटपुट भी बना के दे पा रहा है, आई एम सपोज टू हायर दैट वर्कर एज एन इकोनॉमिक पर्सन, बिकॉज आई हैव टू ड्रॉ आउट द एंटायर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, सो एपी एंड एमपी दे आर फॉलिंग बट दे आर पॉजिटिव, दैट मींस दे आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द आउटपुट। अगर एक एडिशनल वर्कर एक आउटपुट भी बना के कुछ भी कंट्रीब्यूट करे तो उसको हम लोग हायर कर लेगा। आई होप आई एम क्रिस्टल क्लियर विद दिस, एंड दैट इज वाई स्टेज 2 में किया जाएगा ऑपरेट। ठीक है, आ गया समझ में? नाउ
कमिंग टू द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव रिटर्न, क्या होगा? बहुत सारे लोग लाइव छोड़ के चले गए, शायद अभी भी लोग हल्का में ले रहे हैं इकोनॉमिक्स, 8 दिन तो है, आराम से पढ़ लेंगे, बट कोई बात नहीं, द क्लास मस्ट कैरी ऑन। इंक्रीजिंग रिटर्न का कॉज है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, नंबर वन, दैट फिक्स फैक्टर्स आर बेटर यूटिलाइज्ड, दैट इज फर्स्ट कॉज। सेकंड इज डिविजन ऑफ वर्क, जो आपने किया है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिस्ट्रीब्यूशन और डिविजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। हमारे पास जब ज्यादा लोग होते हैं इनिशियल स्टेजेस में, काम बांटना आसान हो जाता है, स्पेशलाइजेशन का एडवांटेज उठाना आसान हो जाता है, बोल के स्टेज वन में इंक्रीजिंग रिटर्न आता है। डिक्रीजिंग रिटर्न का कारण क्या है? डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रपोर्शन, जैसा कि मैंने बोला 2 अवन पे 6 वर्कर अच्छा प्रपोर्शन है, उससे ज्यादा अगर आप लोग को हायर कर लेते हो तो फिक्स्ड टू वेरिएबल फैक्टर का एक अच्छा कॉम्बो होता है, जो प्रपोर्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, दैट लीड्स टू डिक्रीजिंग रिटर्न, क्योंकि वेटिंग पीरियड इंक्रीज हो जाता है। एंड दूसरा हो सकता है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूएबिलिटी, मतलब आप क्या करते हो शॉर्ट रन में, आप फिक्स्ड फैक्टर्स के जगह प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वेरिएबल फैक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, यू आर एडिंग मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, बट देयर इज अ लिमिट अप टू व्हिच यू कैन डू। जहां फिक्स फैक्टर का रिक्वायरमेंट है वहां फिक्स फैक्टर का ही रिक्वायरमेंट है, जहां पिन का काम है वहां प्लेन का कोई काम नहीं हो सकता है, जहां एरोप्लेन का काम है वहां पिन कुछ नहीं कर सकता है, सबका अपना अपना महत्व है, सबका अपना अपना रोल है। So that is why when you hire more than required worker, the proportion of fixed to variable factor gets disturbed, बोल के decreasing return आता है। And negative return का कारण क्या हो जाएगा? Overcrowding, too many cooks spoils the broth, बहुत ज्यादा लोग आप हायर कर दोगे तो काम अटकना शुरू हो जाएगा, and then management problem भी arise होगा। Point number 2, when you try to control everything, you end up controlling nothing. That is आपका management problem। आ गया समझ में? एक्सेसिव डेलीगेशन कर देंगे एंड डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे तो चीजों को ट्रैक नहीं कर पाएंगे, ये आपने कॉमर्स में भी पढ़ा है। Am I clear up till here? And with this we complete our laws of return, हो गया खत्म। अब रिटर्न टू अ स्केल का खाली मीनिंग है जो मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज रिटर्न टू अ स्केल? व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर चेंज्ड साइमल्टेनियसली टुगेदर, दैट लीड्स टू रिटर्न टू अ स्केल इन द लॉन्ग रन। ठीक है, उसमें भी इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल का मतलब होता है कि आपने सपोजिटली 10 वर्कर के साथ एक मशीन लगा के रखा है, आप 10 यूनिट बना रहे हो। जब आपने 2 मशीन लगाया एंड 20 वर्कर की, मतलब सेम प्रपोर्शन से मशीन और वर्कर बढ़ाया, लेकिन आउटपुट 25 हो गया, 10 की जगह आउटपुट 25 हो गया, यानी 5 एक्स्ट्रा आउटपुट आपको मिला, तो उसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल बोलेंगे। कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल होता है कि आप एक मशीन पे 10 वर्कर चला रहे हो, आउटपुट 10 है, 2 मशीन पे 20 वर्कर चला रहे हो, आउटपुट 20 आ रहा है, तो सेम प्रपोर्शन से अगर आउटपुट आ रहा है उसको कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल बोलेंगे। एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल होता है कि आप एक मशीन पे 10 वर्कर चला रहे हो, आउटपुट 10 है, दूसरा मशीन पे आप 10 वर्कर लगा रहे हो, आउटपुट 15 निकल के आया, तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल। इज दैट क्लियर एवरीवन? एम आई क्रिस्टल क्लियर? गॉट इट? Oh, thank you so much, Mr. Thapa. This compliment made my day. If I want to become a teacher, I would become like you. Thank you so much. This means a lot. पता नहीं, कभी कभी जब मैं अपने वीडियोस को चेकआउट करता हूँ तो मुझे लगता है भाई मैंने ऐसा क्या पढ़ा दिया, मतलब ठीक है, आई एम जस्ट टीचिंग द वे थिंग्स आर सपोज्ड टू बी टॉट, बट अ लॉट ऑफ पीपल नाउ आर सेइंग दैट नो, योर एक्सप्लेनेशन आर वेरी मच क्लियर, लाइक योर थॉट्स आर वेरी मच क्लियर कि आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है एंड कैसे बोलना है। सो मे बी शायद आपको पसंद आता होगा। ठीक है, ओ यू गाइस टू विल बी मिस्ड आफ्टर बोर्ड्स। डन हो गया। आप थोड़ा सा ब्रेक ले, 2 मिनट का ब्रेक लेके फिर कॉस्ट को स्टार्ट करते हैं। सर ट्रस्ट मी, नॉट एवरी टीचर इज लाइक यू। थैंक यू सो मच। इफ then maybe God had planned me to become a teacher. I'm so sorry that although I am in teaching, I am into teaching profession for the past 10 years, but I started my YouTube last year. I never knew that I am needed, like a teacher like me is needed in India. I was very happy यहाँ पे छोटी सी दुनिया में अपना, अपने बच्चों के साथ हंसना, खेलना, मस्ती करना, फैमिली के साथ एंजॉय करना। I was always like कि YouTube बहुत एक्स्ट्रा बैगेज है, तो like too much to do,
But then, as I said, last batch they just pushed me to the edge ke karo karo start karo. So thanks to the batch of 2025 and 26 जिन्होंने मेरे को पुश किया यहाँ तक. वहीं से मैंने पहला इंग्लिश का क्लास 12 का इंग्लिश पढ़ाया था लास्ट बैच को. they were studying with me since class 9, but then 12 का मेरा first batch था and they gave me 599 in English. I never thought that this can happen, so it is just blessings, that's all. ठीक है, this means a lot. चले अब 2 दिन का, 2 दिन बोल रहा हूँ, सॉरी 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद we'll start off with cost. We finished our laws of return. हो गया, done. ठीक है, just 2 minutes break, जाओ पानी वानी पी लो, कॉस्ट एंड रेवेन्यू फिर शुरू करते हैं. आई थिंक हमारी क्लास एटलीस्ट 10:30-11 तक तो जाएगी ही जाएगी, बट कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे. सो वी फिनिश्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. अजम्पशंस एक बार देख लो, जब हम लोग लॉ बना रहे हैं तो उसका अजम्पशन भी लिखना इंपॉर्टेंट है. 2 अजम्पशन आपको देना है. सपोजिटली अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन 6 मार्क या 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप क्या क्या लिखोगे? स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. Law of variable proportion states that when more and more of variable factor is applied to given quantity of fixed factor, total product increases at an increasing rate and then eventually increases at a diminishing rate. Do not alter that. उसको change मत करिएगा. जो स्टेटमेंट होते हैं लॉ का उसको एज इट इज लिखिएगा. वो लॉ कोई कारण से है, उसको आप बदल नहीं सकते. ठीक है. 2 assumption that technology should remain unchanged. There has to be both fixed and variable factor in law of variable proportion. एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब ऐसा मान लेते हैं कि सारे लेबर एक जैसा प्रोडक्ट बनाने का क्षमता कैपेसिटी रखते हैं, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है. वेरिएबल फैक्टर्स दैट मींस लेबर का वर्किंग स्टाइल कैन नेवर बी होमोजीनियस, कैन नेवर बी स्टैंडर्डाइज्ड और कैन नेवर बी यूनिफॉर्म, बट ऐसा मान लिया गया है यहां पे. ठीक है, गॉट इट. तो ये हो गया आपका अजम्पशन. 2 अजम्पशन लिखना है. टेबल देना इज ऑप्शनल. अगर आप दे देते हो योर आंसर लुक्स वेरी प्रैक्टिकल, वेरी अपीलिंग. ग्राफ बनाएगा, ग्राफ को एक्सप्लेन करेगा 3 स्टेजेस के साथ एंड देन आपका 6 मार्क या 4 मार्क का आंसर कंप्लीट होता है. ठीक है, गॉट इट. दैट इज हाउ यू हैव टू राइट योर 4 और 6 मार्क का आंसर्स. रिटर्न टू अ फैक्टर मैंने बता दिया क्या है. कॉजेस बता दिया हर एक स्टेज का क्या है. रिलेशनशिप बता दिया टीपीएमपी एपीएमपी का. कौन से स्टेज में प्रोडक्शन होना चाहिए ये बता दिया. बिहेवियर भी आपको बता दिया. टोटल प्रोडक्ट का बिहेवियर क्या है? कॉनकेव अपवर्ड, देन कॉनकेव डाउनवर्ड. increases at an increasing rate, then diminishing rate, reaches maximum and then starts to decline. Average product and margin product का behavior है that they initially increases, reaches their maximum points and then they start to decline. Shape का अगर बात किया जाए, total product is S shape. Average product and marginal product U का उल्टा है, so उसको inverted U shape बोलते हैं. ठीक है, ये हो गया behavior. Clear? And thank you. With this we complete our law of return. अब जाओ 2 मिनट का ब्रेक लो, सांस लो, पानी पियो, उसके बाद we will start with cost and revenue analysis. Thank you so much, Indian M1T. Thank you so much, means a lot. If I could deliver quality to you guys, मेरा मेहनत सफल हुआ. ठीक है, there is no water over here. कोई बात नहीं, मैं पी के आता हूँ पानी. मिस्टर थापा जी आके आपका डाउट को सॉल्व करते हैं. 2 मिनट्स ब्रेक ले लीजिए. ठीक है, उसके बाद डाउट उठाते हैं.
चलो, क्या डाउट है सर? मैं आपकी लाइव टीवी पे देख रही हूँ। लवली। Please upload a video on the important topics. I will do so, but before examination. I am not going to give any important topics 8 days prior. आप कुछ नहीं पढ़ेंगे. As Indians, we have a tendency to take things for granted, and I do not appreciate that. I'm sorry. There was a question in our pre-boards like this. What question? Economic goods command price because they possess utility and are scarce. If an economic good is free of cost, it is not an economic good. ठीक है. सिंह जी, सिंह क्रिकेट एडिट्स का क्वेश्चन है that if an economic good is free of cost, then what will be its demand? Its demand will be till a point where the consumer's total utility maximizes. That is till the point of satiety, point of saturation. ये क्वेश्चन मैंने भी अपने मॉक टेस्ट में यहाँ पे टेस्ट अपॉन किया था बच्चों को ये बोल के, नॉट फ्रॉम डिमांड बट फ्रॉम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. Supposedly, if I give you ice cream free of cost, till when will you consume ice cream? Consumption का मतलब ही हुआ कि डिमांड कितना तक होगा, तो वहां तक होगा till you reach the maximum satisfaction point, that is where TU is maximum and MU becomes equal to 0. That is till your point of satiety, point of saturation. Am I clear? Got it? That is to be your answer. आप केस स्टडीज वगैरह कराएंगे? जी हाँ, हम लोग कराएंगे. Always remember that if a good is available free of cost, a consumer is always to consume the product till the consumer reaches the point of saturation, that is the point of satiety. I hope that's clear. सर वो तो फ्री गुड हो गया ना. हाँ, फ्री गुड हो गया तो क्या हुआ? फिर भी अरे फ्री गुड तो उसके लिए हुआ ना जिसको मैं फ्री में खिला रहा हूं. If supposedly I am treating you ice cream free of cost, बट मेरा तो पैसा लग रहा है और तू कब तक खाएगा अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भी है? क्या तो पूरा, अगर मैंने बोला आज के लिए हम तेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट में आइसक्रीम दे रहा है, या बहुत सारे कंपनी होते हैं जो कि बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर लगाते हैं, तो थोड़ी हमेशा के लिए लगा देते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए होता है ना. सो दैट इज द लॉजिक. नाउ गॉट इट? मेरे लिए तो पेड हो गया. या चलो स्टार्ट करें. लेट्स गेट गोइंग विथ कॉस्ट नाउ. कॉस्ट एंड रेवेन्यू. अब आई थिंक अगर आपको प्रोडक्शन समझ में आ गया है तो कॉस्ट बहुत ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है. सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? Cost is the money expenses which is to be incurred either on purchasing or hiring the factors of production, that is factor services. ठीक है. सर मैंने मेरी दोस्त को डरा दिया कि पेपर टफ आएगा, फिर उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया. वेरी गुड, गुड जॉब, राइट थिंग यू हैव डन. पेपर इजी नहीं आएगा. ठीक है. Constant return to a variable factor is a point where AP is constant. वो हो गया constant return. But जब हम लोग explain करते हैं, we do not explain the constant return. We just explain increasing return, decreasing return, and negative return. Constant return is where MP is equal to AP. AP becomes constant. That is a constant return to a factor. I hope that is clear. कंज्यूमर बिहेवियर डे 1 में किया है बेटा हमने, और मेरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर चीज का है. आप खाली प्लेलिस्ट खोलो, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल के होगा, मैक्रो बोल के होगा, आपको जो चैप्टर का चाहिए वहां पे अवेलेबल है. चलो लेट्स स्टार्ट विद कॉस्ट. कॉस्ट इज आपका मनी एक्सपेंसेस विच इज इनकर्ड ऑन परचेजिंग और हायरिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अगर रेवेन्यू का बात करें तो रेवेन्यू इज द रिसीट. नाउ रिसीट एंड इनकम आर नॉट द सेम थिंग. रिसीट इज बेसिकली जो गुड्स को आपको बेच के पैसा आया, दे आर रिगार्डेड एज रिसीट. And income is what you earn from all the sources, not just by selling your goods and services. Income बहुत सारे sources से आ सकता है. ठीक है, ये अंतर होता है. So revenue is not equal to income. Please do not get them confused. Cost is the money expenses, revenue are the receipts from the sale. ठीक है. Remember that cost is associated with production. One thing that you need to bear in mind is that
कॉस्ट इज एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन, यानी पिछला चैप्टर जो हमने किया लॉ ऑफ रिटर्न, एंड रेवेन्यू इज एसोसिएटेड विथ सेल, रेवेन्यू इज एसोसिएटेड विथ सेल। इतना गया बात आपके दिमाग में। चलिए अब टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो खर्चा जिसको ट्रेस किया जा सके या एक्चुअल अमाउंट में बताया जा सके, या उसको एक्सप्लिसिट इसीलिए बोलते हैं, एक्सप्लिसिट का इंग्लिश मीनिंग होता है टू क्लियरली एक्सप्रेस समथिंग। व्हेन आई से दैट आर्यन ठक्कर इज एक्सप्लेनिंग इकोनॉमिक्स एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली का मतलब हुआ कि बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है। सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मनी कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट वो है जिसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। दीज आर एक्चुअल एक्सपेंसेस व्हिच टेक्स प्लेस इन परचेजिंग और हायरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मनी कॉस्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मनी टर्म्स में पे किया जा रहा है। अकाउंटिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जा रहा है। एंड एक्सप्लिसिट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसको क्लियरली एक्सप्रेस किया जा रहा है, दैट इज एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है एस्टिमेटेड। आज मेरा जो आप कोचिंग सेंटर अगर आके देखोगे, ये मेरे रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ही एक बड़ा सा हॉल था हमारा, उसी को मैंने यूटिलाइज करके बना लिया। जब हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो यहां का जो एक एस्टिमेटेड रेंट होता है उसको भी लेना पड़ता है, क्योंकि अगर मेरे पास अपना सेल्फ ओन्ड स्पेस नहीं होता तो आई वुड हैव रेंटेड आउट अ प्लेस फॉर ओपनिंग माय कोचिंग सेंटर, तब तो वो मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट बनता ना। बोल के सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी एस्टिमेटेड वैल्यू लिया जाता है, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट और द एस्टिमेटेड कॉस्ट। एंड जब हम लोग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो उसमें एक मिनिमम रिटर्न, एक मिनिमम प्रॉफिट जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी गुड को बनाने के वक्त कि दैट प्रॉफिट इज बेयर मिनिमम, जो कि मिलना ही चाहिए इन ऑर्डर टू स्टे इन द इंडस्ट्री। सो दैट प्रॉफिट इज हाई इनफ टू रिटेन इन द इंडस्ट्री येट लो इनफ फॉर एनी न्यू फर्म टू एंटर द इंडस्ट्री, उसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। So they are the minimum payment which the producer should get in order to undertake the risk of production. ठीक है? Thank you so much, Indian. Now let me teach. Clear आ गया? तो जब हम लोग इकोनॉमिक कॉस्ट बनाएंगे, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का कॉस्ट बनाएंगे तो उसमें एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट तीनों को इंक्लूड करके बनाया जाएगा। ठीक है? उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने क्लास 11 में जब आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ रहे थे तभी भी आपने किया था। हम लोग जानते हैं कि हमारा रिसोर्सेज लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड पे या तो हम व्हीट उगा ले या तो हम राइस उगा ले। बट इफ आई अंडरटेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीट, I will have to let go of the opportunity of producing rice. So opportunity cost is basically the cost of the foregone yani let gone commodity which is given up to produce the other alternative commodity. That is opportunity cost. ठीक है? Opportunity cost is the next best alternative which is to be given up in order to produce this particular commodity. Why does the concept of opportunity cost arise? Because of the scarcity of resources. That resources are not in abundance, वहां से उठ के आता है। एंड याद रखिएगा जब भी हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बात कर रहे हैं, हम लोग उसको इकोनॉमिक कॉस्ट के टर्म्स में ही बात कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट लेके ही बात कर रहे हैं। यानी मैंने अगर अपने लैंड में व्हीट उगा लिया और राइस को लेट गो ऑफ किया तो राइस का भी तो कुछ एक अमाउंट होगा ना इकोनॉमिक टर्म्स में, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, नॉर्मल जोड़ के बोल के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट। इट इज सेम थिंग एज इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है? टॉकिंग अबाउट रियल कॉस्ट, रियल कॉस्ट का मतलब होता है एफर्ट, पेन, सैक्रिफाइस जो हम लोग लगा रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन में। सपोजिटली आर्यन ट्यूटोरियल में मैं अपना पेन, एफर्ट, सैक्रिफाइस सब कुछ दे रहा हूं, मेरा पर्सनल लाइफ अभी थोड़ा सा हिल रहा है बिकॉज आई एम डिवोटिंग माई टाइम ओवर हियर, ज्यादा टाइम यहां देना जरूरी है। दैट विल बी कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक कॉस्ट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज रियल कॉस्ट। बहुत सारे लोग इस रियल कॉस्ट का चार्जेस भी लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी फेमस सर्जन के पास जाते हो उसका टाइम लेने के लिए तो हो सकता, एंड दैट टू उनका वेटिंग पीरियड चलता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको वेटिंग पीरियड स्किप करना है, उससे पहले उनका सर्विस चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल पेमेंट देना पड़ता है। सो वो हो जाएगा आपका रियल कॉस्ट, इसका कोई भी प्रैक्टिकल रियल सिग्निफिकेंस नहीं है। एम आई क्लियर विद दिस? दैट इज योर रियल कॉस्ट, इट इज सब्जेक्टिव। प्राइवेट कॉस्ट बेसिकली वो कॉस्ट है जो हम लोगों का पर्सनल एक्सपेंसेस हो रहा है, यानी प्रोड्यूसर्स का खुद का एक्सपेंसेस हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में, वो कहलाएगा आपका प्राइवेट कॉस्ट। उसके बाद आता है एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब होता है अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी जो इनकर करेंगे। सपोजिटली मैंने 100 करोड़ का प्लान डाला,
आपका प्राइवेट कॉस्ट कितना हो जाएगा 100 करोड़, क्योंकि वो 100 करोड़ का मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस है। मैंने उससे 40 करोड़ का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कर दिया, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बढ़ गया उस एरिया का, तो वो 40 करोड़ मैं बेयर नहीं करूंगा, वो अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बेयर करेंगे इन फॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, दैट इज एक्सटर्नल कॉस्ट। एंड जब सोशल निकाला जाएगा तो इस प्राइवेट एंड एक्सटर्नल को दोनों को जोड़ दिया जाएगा। प्राइवेट हो गया आपका 100 करोड़, 40 करोड़ का रिसोर्स डैमेज हुआ, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ, टोटल सोशल कॉस्ट हो गया आपका 140 करोड़। इज दैट क्लियर? Is that clear? Everybody say a yes if you all have understood so that I can go ahead. आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट आते हैं फैक्टर कॉस्ट के ऊपर पे, यानी जिन भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग हायर करते हैं प्रोडक्शन करने में, उसमें जो खर्चा आएगा वो कहलाएगा हमारा फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर्स एंड कॉस्ट। क्योंकि हम लोग शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों को हायर कर रहे हैं, बोल के हमारा कॉस्ट एसोसिएटेड होगा विद फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। हाउएवर जैसे हमने प्रोडक्शन में 3 कॉन्सेप्ट बनाया, हमने जैसे प्रोडक्शन में 3 कॉन्सेप्ट बनाया, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट बनाया प्रोडक्शन का? विच कॉन्सेप्ट्स डिड वी मेक? वी मेड द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल, देन वी मेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पर यूनिट मतलब हो गया एवरेज, एंड देन वी मेड द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज का मतलब हो गया मार्जिनल। तो उसी हिसाब से कॉस्ट का भी जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो होगा आपका इन टर्म्स ऑफ टोटल कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन क्योंकि हम लोग जब फैक्टर्स का बात करें तो हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स दोनों हैं शॉर्ट रन में, बोल के ये कॉस्ट डिवाइड भी हो जाएगा 3 कैटेगरी में, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को जोड़ के एवरेज कॉस्ट, एंड मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल ही रहेगा। देयर इज नथिंग एज मार्जिनल फिक्स्ड और मार्जिनल वेरिएबल बिकॉज मार्जिनल इज डिराइव्ड फ्रॉम टोटल इटसेल्फ। मार्जिनल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट से ही निकाला जाता है, सो बोल के मार्जिनल कॉस्ट एज इट इज है। 7 कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट टुगेदर। Sir, indirect taxes are a type of economic cost because society has to bear. Yes, you can say that. That it is a kind of a cost because society has to endure. It's a kind of external cost. ठीक है? चले आगे बढ़े। सबसे पहले शुरू करेंगे आपका टोटल कॉस्ट के साथ। टोटल कॉस्ट बेसिकली क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ के जो आता है वो है आपका टोटल कॉस्ट। अब आप याद करिए शॉर्ट रन में मैंने आपको सिखाया है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए in short run if we want to expand production that is possible by increasing variable factors while fixed factors remains constant, they do not change। तो अगर fixed factor change नहीं होगा तो total fixed cost भी unchanged ही रहेगा, it will not change and that is why आपको कुछ ऐसा behavior देखने मिलता है कि irrespective of output produce quantity चाहे आप जितना भी बना लो 0 1 2 3 4 5 आपका जो टोटल फिक्स कॉस्ट आता है वो हमेशा सेम आता है, इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, वो कांस्टेंट ही रहेगा। व्हाई? रीजन क्या है? बिकॉज फिक्स्ड फैक्टर्स आर कांस्टेंट या गिवन इन शॉर्ट रन। ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर्स आर गिवन इन शॉर्ट रन। एम आई क्लियर अप टिल हियर? बट वहीं टॉकिंग अबाउट वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का नाम कैसा है? वेरिएबल है। वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल है, वेरिएबल होने का मतलब है कि वो वेरी करेगा, और वेरी करने का मतलब क्या है? वो चेंज करेगा। बट वो कैसे चेंज करेगा? उसका चेंज डिपेंड करता है ऑन द बिहेवियर ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, यानी प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है उसका चेंज। जैसा कि आपने पढ़ाई किया, जैसा कि आपने पढ़ाई किया कि एज पर द लॉ ऑफ वेरिएबल, as per the law of variable proportion, as per the law of variable proportion आपको पहले इंक्रीजिंग रिटर्न आता है एंड देन आपको डिक्रीजिंग रिटर्न आता है। मैंने ऑलरेडी अपने डिटेल्ड वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट समझाया है, अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है, हाँ भाई कैलकुलेटर अलाउड है, थोड़ा पढ़ाई कर लो, पे अटेंशन। पहले इंक्रीजिंग रिटर्न आता है, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न आता है। कॉस्ट जो है वो हमेशा प्रोडक्शन से उल्टा चलता है। इसको अगर सिंपल हिंदी भाषा में समझाओ, इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब हुआ कम कम वर्कर्स
में ज्यादा आउटपुट, कम वर्कर्स में ज्यादा आउटपुट, तो आपका कॉस्ट कैसा आएगा, कॉस्ट का बिहेवियर कैसा आएगा, कॉस्ट आएगा कम। लेकिन डिक्रीजिंग रिटर्न का मतलब हुआ ज्यादा वर्कर्स में कम आउटपुट, ज्यादा वर्कर लगा के अगर कम आउटपुट आ रहा है तो फिर आपका कॉस्ट कैसा होगा, कॉस्ट आपका इंक्रीजिंग होगा। इसीलिए जब आप मेरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ आया होगा, मैंने वहां पे बताया था कि इफ योर टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक इसका उल्टा चलेगा। एंड व्हेन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, अगर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तो फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। अभी मेरे में एकदम ज़ील नहीं है कि मैं वापस से पूरा डिटेल में कराऊं, अगर आपको देखना है आप जाके वो वाला वीडियो देख लीजिए। पेशेंस से 1.5 आवर अगर आपने उस वीडियो को अपना टाइम दे दिया, ट्रस्ट में आपका कॉस्ट कोई इस तरीके से क्लियर नहीं किया होगा जितने डिटेल में मैंने क्लियर किया है। इज दैट क्लियर एवरीवन? कॉस्ट इज एकदम उल्टा ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट इज एकदम उल्टा ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसका अगर ग्राफ का बात करूं, टोटल प्रोडक्ट में आपने ग्राफ कैसा बनाया है, ये बनता है आपका इंक्रीजिंग रेट का ग्राफ, ये बनता है आपका डिक्रीजिंग रेट का ग्राफ। कॉस्ट में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, पहले डिक्रीजिंग रेट आ रहा है एंड देन इंक्रीजिंग रेट आ रहा है। सो अगर टोटल प्रोडक्ट ऐसा दिखता है तो कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट पहले डिक्रीजिंग रेट होगा, इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड देन इंक्रीजिंग रेट होगा, राइट? तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ होगा, ओरिजिन से शुरू होगा। क्यों ओरिजिन से स्टार्ट होगा? बिकॉज इफ यू आर प्रोड्यूसिंग नथिंग देयर विल बी नो वेरिएबल फैक्टर्स हायर्ड, वहां लेबर ही नहीं होंगे, लेबर नहीं होंगे तो आपका लेबर का कॉस्ट भी जीरो होगा, बोल के टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड देन हियर इज योर डिक्रीजिंग रेट फर्स्ट एंड देन हियर इज योर इंक्रीजिंग रेट। ये अगर एस शेप है तो ये इन्वर्टेड एस शेप है, उल्टा एस है। टोटल प्रोडक्ट is S shape, total variable cost is inverted S shape. Am I clear? समझ आया? Total product is concave upward and then concave downward. Total variable cost is concave downward and then it is concave upward. Total product increases at an increasing rate and then increases at a diminishing rate. Total variable cost increases at a diminishing rate and then increases at an increasing rate. Am I clear? Am I clear with the logic? Getting it everybody? समझ आ रहा है सबको क्या हो रहा है? Yes? चले आगे बढ़े। So कैसा कैसा ग्राफ निकलेगा? सबसे पहले तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपका कांस्टेंट आएगा एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड देन इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो उस हिसाब से मैं क्या ले लूं, पहला टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा जीरो, जीरो पे कुछ नहीं, जीरो। फर्स्ट पे मैं ले लेता हूं आपका 5, 5 के बाद डिमिनिशिंग रेट का अगर हम लोग बात करें तो मैं ले लेता हूं आपका इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट में मैं ले लेता हूं 9, 4 का डिफरेंस हो गया एंड देन मैं ले लेता हूं आपका 11। सो कितना का डिफरेंस हुआ, डिफरेंस हुआ यहाँ पे 4 का एंड देन डिफरेंस हुआ यहाँ पे 2 का। ये हो गया आपका डिमिनिशिंग रेट एंड देन इंक्रीजिंग रेट के लिए मैं ले लेता हूं यहाँ पे 14, 14 ले लिया तो कितना का डिफरेंस आया 3 एंड देन मैं ले लेता हूं 20, 20 ले लिया तो कितना का डिफरेंस आया 6। ये हो गया आपका डिमिनिशिंग रेट अप टिल हियर एंड देन हो गया इंक्रीजिंग रेट। छोटा सा स्केड्यूल दिखाओ, ठीक है, छोटा सा स्केड्यूल दिखाओ, बहुत ज्यादा बड़ा स्केड्यूल मत दिखाओ। समझ आया ना सबको क्या है डिमिनिशिंग रेट एंड इंक्रीजिंग रेट? रेट इज बेसिकली चेंज, ठीक है, पहले 5 का चेंज, 4 का चेंज, 2 का चेंज, देन अगेन 3 का चेंज एंड देन 6 का चेंज। गॉट इट? एंड देन इन दोनों को अगर सम अप कर दे, इन दोनों को अगर सम अप कर दे तो हमें हमारा टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है, टीसी मिल जाएगा। तो आ जाइए सम अप करते हैं, कितना आएगा 10 प्लस 0 हो जाएगा 10, 10 प्लस 5 हो जाएगा 15, देन आ जाएगा 19, देन आ जाएगा 21, देन हो जाएगा 24 एंड देन हो जाएगा 30। नाउ ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो दैट फॉर एवरी लेवल ऑफ आउटपुट, एवरी लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपसे रीजन पूछा जाए व्हाई, तो इसका रीजन आप बोलेगा बिकॉज टोटल कॉस्ट इज अ समेशन ऑफ बोथ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो इट इज सपोज टू बी ग्रेटर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के हमेशा ऊपर ही बनेगा।
बट हाउएवर अगर आप दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, कितना का डिफरेंस है 10, कितना का डिफरेंस है 10, कितना का डिफरेंस है 10, 10, 10, 10, टोटल कॉस्ट एक्सीड्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय अ कांस्टेंट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है बोल के जैसा बिहेवियर टोटल वेरिएबल का है ठीक वैसा ही बिहेवियर टोटल कॉस्ट का भी आएगा। कैसे? यहां पे कितना का डिफरेंस है 5, यहां कितना का डिफरेंस है 5, यहां कितना का डिफरेंस है 4, यहां कितना का डिफरेंस है 4, यहां कितना का डिफरेंस है 2, सॉरी 3, यहां कितना का डिफरेंस है 3, यहां कितना का डिफरेंस है, नहीं मैंने ठीक ही लिखा था, माय बैड, यहां कितना का डिफरेंस है, ये हो गया 4, यहां कितना का डिफरेंस है 2, यहां कितना का डिफरेंस है 2, यहां कितना का डिफरेंस है 3, यहां कितना का डिफरेंस है 3, यहां कितना का डिफरेंस है 6, यहां कितना का डिफरेंस है 6। So when total variable cost is increasing at a diminishing rate, total cost is also increasing at a diminishing rate. And when total variable cost is increasing at an increasing rate, total cost is also increasing at an increasing rate. आ गया समझ में क्या होगा? आया समझ में? In other words, total cost is a replica of total variable cost. However, it just exceeds total variable cost. Total cost ज्यादा है total variable cost से by a constant total fixed cost. बोल के जब आप ग्राफ बनाते हो, इसका जब आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। सबसे पहले तो लेबलिंग करना मत भूलिएगा, वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस, यहां आ जाएगा आपका आउटपुट एंड यहां आ जाएगा आपका कॉस्ट। वो फिर टोटल कॉस्ट भी हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकता है एंड आपका टोटल फिक्स कॉस्ट भी हो सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग विद द टोटल फिक्स कॉस्ट फर्स्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट विल बी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि टीएफसी कांस्टेंट है। उसके बाद टीवीसी कैसा आ रहा है? टीवीसी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, TVC will be concave downward and then concave upward. So here it is concave downward and then it is concave upward. This is TVC. Why starting from origin? Because for zero level of output produced there is no variable factor. उसके बाद observe करिए, zero level of output पे, zero level of output पे क्योंकि TVC zero है, there is no variable cost, बोल के TFC और TC same है। TFC and TC they both are same for the zero level of output. Yes. So that is why TC is to start from this particular point where TFC begins, point A. ठीक है, इसका अगर आपसे रीजन पूछे that why for zero level of output TC and TFC is same over here, TC is equal to TFC. क्यों? Because TVC is equal to 0. That will be your reason for this point A. ठीक है, and then it is a replica, that means total cost also increases at a diminishing rate and then increases at an increasing rate. वाह क्या सुंदर ग्राफ बना है। They both are separated by a parallel distance and that parallel distance is constant total fixed cost. ठीक है, that parallel distance is constant total fixed cost. Am I clear or not? Am I clear or not? सबको समझ आ गया? एक मिस्टेक जो मैं देखता हूं अक्सर बहुत बार, एंड टीचर्स उसके लिए नंबर काटते हैं। बहुत कोई अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐसे बना के आता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट ऐसे बना के आता है। ये जोन क्या है? इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट तो ठीक है, ये डिक्रीज क्यों कर रहा है एंड देन ये मिनिमम पे क्यों आ रहा है? दिस इज इनकरेक्ट, डोंट डू इट, ऐसा मत करिएगा। कॉस्ट कभी भी डिक्रीज नहीं करता है। ग्राफ बनाते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा दैट इट इज टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। आप जैसे टोटल प्रोडक्ट में क्या करते हो, इसको नीचे ले आते हो, वो चीज ये जोन यहां पे मत करिए, नॉट अलाउड। मैक्सिमम तक लेके जाइए देन यहां से वो ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, दिस इज हाउ योर टीवीसी और टीसी इज टू लुक लाइक। थोड़ा इस पर्टिकुलर जोन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। शुड आई गो अहेड? चलो, मूविंग टूवर्ड्स एवरेज कॉस्ट। नाउ सिंपल लॉजिक है, एक बड़ा सा केक है, ये केक है टीएफसी, इसको खाने वाला एक जन है, तो उस एक जन को पूरा केक खाने मिलेगा ना?
खाने वाला एक जन है तो पूरा खाएगा। अब उसको अगर खाने वाले 2 जन आ जाएंगे तो ये 2 जन में इक्वली बट जाएगा। अब उसको खाने वाले अगर 4 जन आएंगे तो पीस और छोटा हो जाएगा, 6 जन आएंगे तो और छोटा हो जाएगा, 8 जन आएंगे तो और छोटा हो जाएगा। क्या समझ आया? ये जो पीसेस छोटे होते चले गए इसी को तो बोलते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। कहने का मतलब है एएफसी कैसे निकाला जाएगा? टीएफसी बाय क्वांटिटी करके। अगर मेरा न्यूमरेटर कांस्टेंट है, ठीक है, अगर मेरा न्यूमरेटर कांस्टेंट है और आउटपुट कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जाए, अगर मेरा केक का साइज कांस्टेंट है एंड खाने वाले लोग अगर बढ़ते जाए तो एएफसी का बिहेवियर कैसा आएगा? एएफसी कंटिन्यूअसली फॉल होते चला जाएगा। एम आई क्लियर विथ एवरीवन? 10/1। सो इसको अगर स्केड्यूल के फॉर्म में डिस्कस करें, स्केड्यूल के फॉर्म में डिस्कस करें तो क्या हो जाएगा? 10/0 एएफसी क्या आएगा? 10/0 इज निल, नथिंग। याद रखिएगा डिनोमिनेटर पे अगर 0 है तो इंफिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा, गलती से 0 मत लिख दीजिएगा, आपका नंबर डिडक्ट हो जाएगा। 10/1 is 10, 10/2 is 5, 10/3 is 3.33, 10/4 is 2.5 and 10/5 is 2. In other words, if the size of the cake is constant and the number of eaters increases, average, that is per unit fixed cost is to decrease. Got it? Got it? However, अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, ये जो 1 है ये है लो लेवल ऑफ आउटपुट एंड ये जो 5 है ये है हाई लेवल ऑफ आउटपुट। क्या मैं बोलूं दैट फॉर द लो लेवल ऑफ आउटपुट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज वेरी हाई एंड फॉर द हाई लेवल ऑफ आउटपुट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज वेरी लो? लो लेवल ऑफ आउटपुट पे एएफसी 10 है एंड हाई लेवल ऑफ आउटपुट पे एएफसी बहुत कम है, 2 है। ऐसा क्यों है? बिकॉज टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज स्प्रेडिंग ओवर, वो बढ़ जा रहा है। यानी केक का स्लाइसेस का साइज जो है वो छोटा क्यों होते जा रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ ईटर्स इंक्रीज कर रहे हैं। सिमिलरली एएफसी का साइज कंटिन्यूअसली श्रिंक क्यों हो रहा है, रिड्यूस क्यों हो रहा है? बिकॉज टीएफसी कांस्टेंट है एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड अगर इंक्रीज होगा तो टीएफसी इज गेटिंग डिवाइडेड बाय लार्जर एंड लार्जर यूनिट्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो द रीजन इज दैट टीएफसी इज कांस्टेंट। इसी की वजह से जब आप एएफसी बनाते हो तो AFC is very high for the low level of output and AFC is very low for the high level of output. In other words, it is asymptotically hyperbola. It is a rectangular hyperbola and it is asymptotic. Hyperbola का मतलब क्या हुआ? That it approaches both the axis. It approaches both the axis and अगर इसके अंदर के आप rectangles बनाओगे तो उनका एरिया एकदम बराबर आएगा. That is rectangular hyperbola. एंड असिम्प्टोटिक होने का मतलब क्या हुआ? असिम्प्टोटिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एएफसी कभी भी किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकता है, चाहे वो वाई एक्सिस हो चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वो दोनों में से कोई भी एक को इंटरसेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एएफसी टीएफसी से निकाला जा रहा है एंड टीएफसी तो कभी जीरो होता नहीं है। तो अगर न्यूमरेटर का वैल्यू जीरो नहीं आएगा तो फाइनल आंसर कभी जीरो नहीं आएगा, बोल के एएफसी कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। एम आई क्लियर विद दिस? दैट इज व्हाई इट इज असिम्प्टोटिक। रीजन समझ में आया सबको? हाइपरबोला क्यों है एंड असिम्प्टोटिक क्यों है? पक्का? श्योर? सर आपकी डिटेल वाला वीडियो देख लो, तो लाइव देखने की जरूरत है, आपका इच्छा। अगर आपको रिवीजन करना हो मयंक वापस से तो आप लाइव में आ सकते हो, नहीं करना हो तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, दैट्स टोटली योर कॉल। चले आगे बढ़े। नाउ एवीसी के बारे में अगर बात करें, बहुत इजी है। एवीसी कैसे निकलेगा? एवीसी निकलेगा टीवीसी बाय क्यू करके। मेरे को टीवीसी का बिहेवियर बताओ, टीवीसी कैसा है? इट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड देन इट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। ये जो रेट है यही आपका जवाब है। दिस रेट इटसेल्फ इज योर आंसर। अब मैं यहां पे अगर केक बनाता हूं, केक ऐसे बनाता हूं, पहले 10 पाउंड का केक आया, फिर 5 पाउंड का केक आया एंड फिर 2 पाउंड का केक आया। यही हो गया आपका टोटल। इज दिस योर टोटल विच इज इंक्रीजिंग, टीवीसी विच इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट? यही तो हुआ ना टोटल, करेक्ट? ये हुआ टोटल। तो इसको अगर डिवाइड किया जाएगा, सपोजिटली खाने वाले 2 ही लोग हैं, तो इस 10 पाउंड के केक का जो स्लाइस होगा वो काफी बड़ा खाने मिलेगा कंपेयर टू 5 पाउंड के स्लाइस का पीस जो कि काफी छोटा मिलेगा। 10 पाउंड के मुकाबले इसका स्लाइस छोटा होगा एंड इसके मुकाबले 2 पाउंड का जो स्लाइस खाने मिलेगा वो और छोटा होगा। अग्रीड? इन अदर वर्ड्स, अगर टोटल
बढ़ रहा है डिक्रीजिंग प्रपोर्शन से, तो हर बार जब वो बटेगा, जब वो डिवाइड होगा, तो उसका प्रपोर्शन जो है, उसका जो पर यूनिट है, वो धीरे 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 छोटा होते चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग यहां देख लिए न्यूमेरिकल फॉर्मेट में अगर सॉल्व करें, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, इफ आई कैलकुलेट एवीसी फ्रॉम टीवीसी, 0/0 क्या आ जाएगा, नील। 5/1 आ जाएगा 5, 9/2 आ जाएगा आपका 4.5, 11/3 आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब मेरे को इतना स्पॉन्टेनियसली डेसिमल लगाने भी नहीं आएगा, ऑब्वियसली आई एम अ बिट नर्वस इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन एज वेल। So 11 divided by 3 will be 3.67. 14 divided by 4 will be 3.5 and 20 divided by 5 will be 4. ऐसा होगा कुछ बिहेवियर अपना। Is this the behavior for us? कि पहले क्या हो रहा है, पहले देखो, पहले कम हुआ, एवीसी पहले कम हुआ एंड देन बढ़ा, एवीसी पहले कम हुआ एंड देन बढ़ा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है टीवीसी, क्योंकि जब तक टीवीसी इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट में, वो हमेशा एवीसी को रिड्यूस करेगा। एंड जब टीवीसी इंक्रीज करेगा, मान लीजिए उसके बाद आपके पास आया 3 पाउंड का केक, फिर आया 7 पाउंड का केक, और फिर आया 15 पाउंड का केक, तो अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट में, तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? गॉट द लॉजिक क्या है जिसकी वजह से एवीसी कैसा बनेगा, इट इज यू शेप, इट डिक्रीजेस फर्स्ट एंड देन राइजेस। ठीक है, इट डिक्रीजेस फर्स्ट एंड देन इट राइजेस। तो ये किसका ऑपोजिट बना, ये एकदम एवरेज प्रोडक्ट है, जो एवरेज प्रोडक्ट है उसका ठीक उल्टा बना। एवरेज प्रोडक्ट वाज इन्वर्टेड यू शेप, AVC is U shape, following from the law of variable proportion. ठीक है, from the law of variable proportion. अगर मैं आपसे पूछूं कि why AVC falls, तो इसका कारण आप बोलोगे increasing return के वजह से, एंड अगर मैं बोलूं why does AVC rise, तो इसका कारण आप बोलोगे decreasing return की वजह से। So AVC is U shape because of the law of variable proportion. It decreases due to increasing return, and then it increases due to decreasing return. Am I crystal clear in this explanation of mine? सबको समझ आ गया क्या हो रहा है? थैंक यू सो मच सुदीप मंडल। यस, आगे बढ़े। तो सेम लॉजिक क्या है, टोटल अगर एवरेज कॉस्ट निकालना हो तो एवरेज कॉस्ट आप कहां से निकाल सकते हो, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट कर दोगे तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, या फिर और अगर आप एएफसी और एवीसी को ऐड कर दो तो भी आपका एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। आई प्रेफर दिस मेथड बिकॉज दिस इज इजियर टू डू। हम लोग क्या जानता है, टोटल कॉस्ट का बिहेवियर भी कैसा है, इट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड देन इट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो सेम लॉजिक लगेगा ना यहाँ पे जो टीवीसी का लगा है, सेम लॉजिक लगा है ना, सेम लॉजिक लगेगा ना। इफ टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होगा, एंड व्हेन टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। बोल के एवरेज कॉस्ट भी यू शेप ही होता है, बोल के एवरेज कॉस्ट भी यू शेप ही होता है। ठीक है, बट जब आप एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को साथ में प्लॉट करते हो, ये हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहला मेरा सवाल, why is AC ग्रेटर देन AVC? इसका आंसर क्या होगा आप बताइए, क्यों AC ऊपर है AVC के? बिकॉज एवरेज कॉस्ट हैज दोनों चीज ना, दो चीज है, क्या है दो चीज, कमेंट में लिख के बताओ। एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन AVC क्यों है, क्योंकि उसमें क्या क्या है, AC has both AFC and AVC, right? Because AC is a summation of both AFC plus AVC. That is why it is supposed to exceed AVC. Logic is clear. अगला चीज अगर हम लोग देखें, दोनों के बीच का डिस्टेंस
कम होते जा रहा है. Initially the difference between AVC and AC is very high, and then eventually the difference is very low. On the other hand, जब हम लोग total का concept बना रहे थे, तो total variable cost TVC और TC में एकदम पैरेलल डिस्टेंस था. यहां सबसे पहले तो पैरेलल डिस्टेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ कांस्टेंट TFC. तो यहां के बीच का डिफरेंस कम क्यों होते जा रहा है? यहां के बीच का डिफरेंस कम क्यों होते जा रहा है? वेरी गुड, दिस इज JW. This child has studied and watched every video of mine. Really proud of you. Why is the difference falling? Because they are separated by AFC, which is continuously decreasing. Because AFC is continuously decreasing. अगला सवाल मेरा, क्या under any circumstances AVC और AC एक दूसरा को intersect आर पार कर सकता है? Is it possible कि AVC और AC एक दूसरा को intersect करके क्रॉस करके आगे बढ़ जाए? Is that possible? नहीं, not possible. नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अभी थोड़ा देरी पहले आपने किया कि AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज असिम्प्टोटिक. असिम्प्टोटिक होने का मतलब हुआ कि AFC कभी भी जीरो नहीं हो सकता है. एंड अगर AFC कभी जीरो नहीं होगा तो AC और AVC कभी इक्वल हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज दे विल ऑलवेज बी सेपरेटेड बाय AFC, which is positive. Is that clear? Because AFC is asymptotic and positive, so AVC and AC will always be separated by a positive AFC. Is that clear, guys? सबको समझ आ गया? So they can never intersect each other. और एक और सवाल अगर आपसे पूछा जाए, why is initially the difference very high and eventually it is very low? Why is difference very high and eventually very low? It is because AFC is high for the low level of output, and then eventually AFC is low for the high level of output, and that is why the difference between them is continuously falling. Am I crystal clear in my explanation? क्या आपको समझ आ गया क्या बोल रहा हूं? पक्का? There are only few selective, those who are continuously commenting. बाकी सारे तो लग रहा है सो ही गए हैं पढ़ते पढ़ते. Guys, are you all awake? Hello everybody. जागो ग्राहक जागो, नहीं तो इको में भारी नुकसान हो जाएगा. Wake up, wake up. Crystal clear. Have watched all your videos. Thank you so much, Mr. Mandal, Sudeep Mandal. Awake. Hi guys. हाँ चलो. Now moving towards marginal cost. Marginal cost क्या होता है? Marginal cost is change in total, right? Marginal cost is change in total cost. बोल के marginal cost निकलता कैसा है? TCN minus TCN minus 1. एक तरीका तो ये है, या फिर आप मार्जिनल कॉस्ट को डेल्टा टीसी बाय डेल्टा क्यू करके भी निकाल सकते हो. चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी करके. ठीक है. एम आई क्लियर? फिजिकल एजुकेशन का वीडियो आएगा सर. मैं प्रणाम करूं, आपके चरण स्पर्श करता हूं, मेरे बस का नहीं है अब और. ठीक है, दिस इज द लास्ट सब्जेक्ट दैट आई एम केटरिंग टू. फिर थोड़े दिन बाद बोलेगा भाई ये तो सब पढ़ा देता है, ये कैसा टीचर है, तो सब आता है. कुछ तो गड़बड़ है दया. आर्यन सर सब कैसे पढ़ा दे रहे हैं? जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन. नहीं, आई एम जस्ट एन इको टीचर एंड एन इंग्लिश टीचर. कॉमर्स तो ऐसे ही चलो ठीक है पढ़ा देते हैं, बिकॉज इको एंड कॉमर्स गोज इन कॉम्बो. अदरवाइज नहीं, और कुछ नहीं पढ़ाना मेरे को. ठीक है. नाउ मैं एक और चीज के ऊपर आऊंगा, दैट मार्जिनल कॉस्ट कैन आल्सो बी डिराइव फ्रॉम टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TVCN माइनस TVCN माइनस 1. या फिर आप बोल सकते हो मार्जिनल कॉस्ट इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन TVC बाय चेंज इन क्वांटिटी. ऐसे करके भी निकल सकता है. लेट मी कम टू दिस. इस पे मैं आता हूं कि क्यों होगा. सबसे पहले तो TC का बिहेवियर कैसा है? TC increases at a diminishing rate and then TC increases at an increasing rate. रेट ही आपका आंसर है, रेट ही आपका मार्जिनल कॉस्ट है.
अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, स्केड्यूल कहां है, ये रहा, टोटल कॉस्ट अगर इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट पे तो मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगा, आ जाओ मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। कितना का डिफरेंस है, 5, पहला तो मैं ले लूंगा नील, पहला है 5, कितना का डिफरेंस है 4, 4, कितना का डिफरेंस है 2, 2, कितना का डिफरेंस है 3, 3, कितना का डिफरेंस है 6, 6। So when total cost is increasing at a diminishing rate and then increasing at an increasing rate, that rate is your answer. So when it is increasing at a diminishing rate, marginal cost is to decrease. देखिए marginal cost decrease हो रहा है. And when it is increasing at an increasing rate, marginal cost is to increase. So देखिए ये आपका increase हो रहा है. ठीक है? Yes, Mr. Mandal, I'm not minding you. Please, now let me teach. ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स मार्जिनल कॉस्ट भी कैसा होगा, मार्जिनल कॉस्ट भी आपका यू शेप ही आएगा, इट डिक्रीजेस फर्स्ट एंड देन इंक्रीजेस, फॉलोइंग फ्रॉम द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, फॉलोइंग फ्रॉम द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, इट डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न, क्योंकि अगर आप मार्जिनल प्रोडक्ट को देखो तो ठीक मार्जिनल प्रोडक्ट का उल्टा है, इन्वर्टेड यू शेप, marginal product is increasing बोल के marginal cost is decreasing, marginal product is decreasing बोल के marginal cost is increasing, following from the law of variable proportion। ठीक है, आ गया समझ में, everybody is that clear, understood, got it। अब मैं वापस से डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस मैं आपको बता दूं, जैसे आपने अभी लॉ ऑफ रिटर्न में सीखा मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट का बिहेवियर सीखा ना आपने, क्या सीखा कि अगर मार्जिनल ज्यादा होगा एवरेज से तो वो हमेशा एवरेज को ऊपर लेके जाएगा, मार्जिनल अगर बराबर होगा एवरेज से तो वो हमेशा एवरेज को रोक देगा, एंड मार्जिनल इस जोन के लिए इफ मार्जिनल विल बी लेस देन एवरेज तो वो हमेशा एवरेज को नीचे ले आएगा। सेम रिलेशनशिप अप्लाइज हियर एज वेल, बोल के जब आपने पढ़ाई किया होगा तो आपने देखा होगा कि ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट, कुछ ऐसा बन जाता है आपका मार्जिनल कॉस्ट, राइट, ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज इट हैपनिंग, सेम लॉजिक क्या है, जब तक मार्जिनल कम रहेगा एवरेज से वो एवरेज को क्या करेगा, हमेशा नीचे लेके आएगा, एवरेज विल ऑलवेज फॉल। क्यों एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पे है, बिकॉज मार्जिनल इज इक्वल टू एवरेज बोल के एवरेज इज कांस्टेंट एंड मिनिमम, and why is average cost rising, because marginal is greater than average, so when marginal is greater than average, average is to increase बोल के average continuously rises। यहां देखिए marginal नीचे, blue line is marginal less than average बोल के average गिर रहा है, marginal is equal to average बोल के average constant है, and marginal greater है average से बोल के average cost बढ़ रहा है। same logic applies here, just like your production। am I clear? सर कब तक खत्म होगा ये क्लास, बस थोड़ा सा और, आई थिंक आई जस्ट फिनिश अप कॉस्ट रेवेन्यू कराने का मेरे में एनर्जी नहीं बचा है, ना ही आप में बचा होगा समझने का। चले आगे बढ़े, एंड आई थिंक विद दिस, अच्छा देयर इज वन मोर रिलेशनशिप, एक और कर लो, मैं बता दे रहा हूं, जैसे आपने रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट किया ना, हालांकि बुक में नहीं है बट ये आया हुआ है एग्जाम में एक बार, you all did this, no? क्या रिलेशनशिप आपने किया, when total product increases at an increasing rate, marginal product increases, when total product increases at a diminishing rate, marginal product decreases, when total product reaches its maximum and remains constant, marginal product becomes equal to 0, and when total product starts to decline, marginal product turns negative, right? ये आपने किया ना, सेम रिलेशनशिप बनता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का, कुछ ऐसा दिखता है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट? ये स्लोप चेंजिंग वाला पॉइंट है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा, नीचे एक और क्वाड्रेंट बनाएगा,
Same logic. When total variable cost increases at a diminishing rate, marginal cost decreases. When total variable cost changes its slope, जिस पॉइंट पे ये पॉइंट ए पे अपना स्लोप चेंज कर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट वहां होगा मिनिमम. Marginal cost will remain at its minimum, and when total variable cost increases at an increasing rate, marginal cost will increase. ठीक है, marginal cost will increase, decreases and minimum. Is that clear? ये same logic यहाँ apply होता है. Point of inflection पे MP maximum है, again slope changing पे marginal cost minimum है. Diminishing rate है बोल के घट रहा है, diminishing rate है बोल के घट रहा है, increasing rate है बोल के बढ़ रहा है, increasing rate है बोल के बढ़ रहा है. Am I clear with this? अब लास्ट सवाल आपका एंड देन आपका लाइफ खत्म. रेवेन्यू हम लोग कल कवर अप कर लेंगे. या यू ऑल वांट मी टू कैरी ऑन विद रेवेन्यू एज वेल? आई कैन गो ऑन इफ यू वांट. ठीक है, रेवेन्यू विल टेक अनदर 10-15 मिनट्स इसके बाद. नहीं तो आप बोलेगा तो कल करा देगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है. नाउ आपका एक सवाल जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे, Why is it like कि मार्जिनल कॉस्ट को अगर टोटल कॉस्ट से निकाले TCN माइनस TCN माइनस 1 करे तो भी आ जाएगा, एंड मार्जिनल कॉस्ट को अगर TVCN माइनस TVCN माइनस 1 करे तो भी आ जाएगा. आप स्केड्यूल में, सॉरी आप स्केड्यूल में देखो. वेयर इज द स्केड्यूल गॉन? वेयर इज द स्केड्यूल गॉन? आई थिंक यहां कहीं पे ही है. हाँ, चला गया, गायब हो गया, याद नहीं आ रहा स्केड्यूल कौन से पेज में बनाया है. हाँ ये रहा, यहां है स्केड्यूल. मार्जिनल कॉस्ट आप टोटल से निकालो तो भी सेम आ रहा है, 5 4 2 3 6, या टोटल वेरिएबल से निकालो 5 4 2 3 6, सेम आ रहा है. व्हाई इज इट सो? व्हाई इज इट सो? I'll tell you one thing. We know that total cost is total fixed cost plus total variable cost. ये है कांस्टेंट, राइट? ये है चेंज, राइट? तो ये क्या कर रहा है? ये भी तो चेंज कर रहा है ना. टीएफसी कांस्टेंट है, टीवीसी चेंज है, तो टीसी भी तो चेंज कर रहा है ना. तो चेंज चेंज कॉमन हो गया ना. टीसी का चेंज इज सेम एज टीवीसी. टीसी का चेंज इज सेम एज टीवीसी. एंड मार्जिनल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल? मार्जिनल मींस चेंज. तो मार्जिनल यानी चेंज, चाहे आपको टीसी से निकालना हो या टीवीसी से निकालना हो, दोनों से सेम आएगा, क्योंकि इसका चेंज इज सेम एज टीवीसी का चेंज. एम आई क्लियर? क्या समझ आया? The slope of TC and TVC, they both are identical. The shapes are identical. बोल के MC derived for TC is same as TVC. But अगर आप MC को सम अप करोगे तो वो आपको TVC ही देगा, TC नहीं देगा. ऐसा भी है जी, हाँ ऐसा भी है. ऐड करिए 5 + 4 9. 5 + 4 is 9 which is TVC. 9 + 2 is 11 which is TVC. 11 + 3 is 14 which is TVC, and +6 is 20 which is TVC. मेरा सवाल, क्यों? Why if we add up मार्जिनल टीवीसी आ रहा है, टीसी क्यों नहीं आ रहा है? मार्जिनल का अभी मैंने आपको मीनिंग क्या समझाया? मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, राइट? टोटल में एक एलिमेंट तो चेंज हो रहा है, टीवीसी इज चेंजिंग, बट एक एलिमेंट कांस्टेंट भी है. बोल के अगर आप चेंज को ऐड करोगे यानी मार्जिनल को ऐड करोगे तो ये कांस्टेंट वाला एलिमेंट तो हट जाएगा वहां से, क्योंकि मार्जिनल only denotes change and total cost has both a change and a constant as well. That is why. Am I crystal clear that when you add MC you will get TVC and not
TC because TC has the presence of TFC as well. चले कंप्लीट करें आज का क्लास. Are you all done or you all want me to carry on with revenue? I think I'm done for the day. कल हम लोग कर सकते हैं. काफी अच्छा स्पीड हो रहा है हमारा. ठीक है सर. टीपी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. कभी नहीं, कभी नहीं. टोटल प्रोडक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव. नॉट पॉसिबल. ना टोटल प्रोडक्ट, ना टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ना टोटल कॉस्ट, ना एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ना एवरेज कॉस्ट, ना वेरिएबल कॉस्ट, ना मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है. आई थिंक वी आर डन फॉर द डे. बहुत अच्छा स्पीड पकड़ा है हमने. सिर्फ 2 दिन में एक चैप्टर मतलब सेकंड चैप्टर डिमांड से लेके कॉस्ट कंप्लीट कर लिया. उसका बस रेवेन्यू बाकी है. दैट टू इन डिटेल. सो प्राउड ऑफ यू एंड प्राउड पैट ऑन माई बैक इज वेल. लाइक वाओ, कर लिया. आई टोल्ड यू इकोनॉमिक्स पढ़ाते वक्त आई वोंट बी टायर्ड. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट. ठीक है. डजंट मैटर कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं. दैट हार्डली मैटर्स. बेटा रेवेन्यू आप करा देंगे तो आई थिंक कुछ समझ नहीं आएगा एंड इट वोंट बी फ्रूटफुल. अगर आपको रेवेन्यू करना है तो आप जाके मेरा डिटेल्ड वाला एक्सप्लेनेशन देख लो. हम लोग लाइव पे भी करेंगे लेकिन कल करेंगे. आई डोंट वांट टू बर्डन एवरीवन. ठीक है. आपका साइड बिजनेस क्या है मैं कुछ रिवील नहीं कर रहा हूं. ठीक है. चलो. So I'll see you guys tomorrow. We are done with cost. Revenue will be taken up tomorrow. कल revenue, producers equilibrium and determination सुबह एक साथ छोटे छोटे forms of market के लिए I would advise. Forms of market आप जाके मेरा वीडियो देख लो. डिटेल वाला वीडियो देख लो. उसमें बहुत अच्छे से कवर अप किया हुआ है. और अगर बहुत रिक्वेस्ट करेगा ऑडियंस बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद मैक्रो टुमारो इवनिंग. ठीक है. टुमारो long run cost is only the concepts are there and derivations are not there. So if you want to do long run cost आप कर लो. मेरा वीडियो का लास्ट पार्ट में अगर आप चले जाओगे तो वहां पे लॉन्ग रन कॉस्ट कवर अप किया है. आपको देखना है देख लो. अदरवाइज यू जस्ट रीड वंस एंड डन. नॉट देयर इन द सिलेबस. सो डोंट यूज योर ब्रेन मच. ठीक है. Tomorrow what time? Again, first live will be 3 and second live will be 8 in the 8:30 in the evening. I think this time is perfect. And बीच का टाइम आपको अपना सेल्फ स्टडी के लिए मिल जा रहा है. ठीक है. एंड अगर आपको नोट्स परचेज करना है तो आप कर सकते हो. ठीक है. इज दैट क्लियर? मेक सेंस? लॉन्ग रन वाला आपको देखना है. आप कॉस्ट एंड रेवेन्यू का एकदम लास्ट पार्ट में चले जाइए. वहां आपको लॉन्ग रन मिल जाएगा. उसको आप आराम से देख लो अगर करना है तो. अदरवाइज यू जस्ट रीड इट एंड यू कैन लीव इट आउट. छोड़ भी सकते हैं आप, आपका इच्छा. एंड रेवेन्यू वी विल कवर अप टुमारो. इफ यू वांट टू फिनिश रेवेन्यू यू कैन गो माय सेपरेट पार्ट ऑन रेवेन्यू. वो ऑलरेडी बना हुआ है. ठीक है. चलो बाय बाय, गुड नाइट. आई विल सी यू ऑल टुमारो. बाय बाय. बाय गाइस.